I welcome Madam Saloni Priya. She is an eminent psychologist and executive director to one of the voluntary organization Umeed based on Kolkata, and she is having more than 25 years of experiences dealing with education and psychology. Now she is working as consultant in training division CCRT New Delhi. Madam Saloni Priya is associated with various learned bodies like Indian Society of Psychology and such research bodies. She is having experiences to develop various modules and rigorous training programs for teachers training. Ma'am, this assembling is around 200 teachers from 14 states there with us. This team is very disciplined and learned, I saw during this program. On behalf of these 200 teachers and CCRT, again, we welcome you, ma'am. Thank you. Thank you, everyone. A very warm and good morning to all our dear educators. It is wonderful, day 2. And yes, thank you for all your feedbacks yesterday when you all were sharing. We heard a lot about our language, culture, and our magnificent structures and architectures of temple. And today, after a session by Dr. Sandeep on culture, we are today talking about why CCRT visions and CCRT का जो ऑब्जेक्टिव है कि आप हर टीचर हमारे लिए एक रिसोर्स पर्सन की तरह. We want each one of you to feel that you are the greatest resource person which we have, and the resource person who is going to the classrooms and through your classrooms reaching out to the youth of our country. So dear teachers, I am requesting Ranjay sir to put up my presentation. I would like all of you to take this one moment और आप सब अपनी अपनी तरह से एक जगह लिखने की कोशिश करिए कि टीचर्स का क्या रोल है when it comes to teaching culture. आपको क्या लगता है? I want you to write, you can share it on the chat box, but एक हम इस सेशन को शुरू करने के पहले थोड़ा सा सोचें कि हमारा क्या रोल है as cultural facilitators for this. बताइए. मीनाक्षी वाजपेयी मैम, डॉक्टर मीनाक्षी, I can see you. Sudeshna Chatterjee ma'am, Lomeshwari, Bairu sir. It is wonderful that this is a platform for all of us to interact. What do you feel is the role of an educator when it comes to teaching culture? Because we are teaching languages, we are teaching subjects, we are teaching science, we are exposing children to sports and so many activities in the school. Do you see yourself that in your classrooms, the way you are teaching, you are actually able to sow the seeds of how children can create a very strong foundation for national pride? मैं अपनी बात अगर कहूं तो आज अगर हमने नेशनल एंथम सीखा है, वंदे मातरम सीखा है, हम अपने देश के हर प्रांत के फेस्टिवल्स को जानते हैं, तो इट इज नॉट बिकॉज ऑफ माय पेरेंट्स बट बिकॉज ऑफ माय टीचर्स एंड माय स्कूल. डू यू एग्री विथ मी? ओम जोशी सर, हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विथ मी दैट यस मैम, ये कई चीजें हाँ हम अपने स्कूलों में ही सीखते हैं ना, क्योंकि एक तो ये बच्चों का वो समय है जब बच्चे बहुत जल्दी चीजों को ग्रास्प करते हैं, और दूसरा ये समय जब हम अपनी उम्र के बाकी बच्चों के साथ स्कूल में हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, एक्टिविटीज की तरह जब इन चीजों को करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं जीवन भर के लिए हमारी बुनियाद बन जाए. एंड दैट इज यही बच्चे आगे जाकर इन्हीं विचारों को सामाजिक सरोकार करते हुए आगे बढ़ेंगे. ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है.
जो हम बिल्कुल संस्कार सर, देंगे। और इसकी बहुत जरूरत है। बदलते परिवेश में डिजिटल टेक्नोलॉजी जिस तरह से वेस्टर्न कल्चर को ज्यादा से ज्यादा ला रही है, हमारी लड़ाई यही है। और लड़ाई तो थोड़ा नेगेटिव शब्द है, मैं कहूंगी हमारी मुहिम यही है कि हम सीसीआरटी के माध्यम से आप सबको एक एक सैनिक बना दें जो इसको आगे ले जाए। So Ranjay sir, just put click. There was a short introduction given by Dr. Sandeep, my revered colleague, where in the training department, it is a wonderful teamwork. I am sharing here a lot of possibilities of building skills with children. और यहाँ मैं चाहूंगी कि टीचर्स आप 3 शब्दों को लिखें और उनका चिंतन और मनन करें। पहला है लाइफ स्किल्स। इसमें स्किल और लाइफ, वो क्षमताएं जो हमें जीवन जीने की कला सिखाएं, वही लाइफ स्किल्स है। WHO ने भी लाइफ स्किल्स बताए हैं कि आने वाली पीढ़ी के लिए वो कौन सी चीजें हैं जो बच्चों में डेवलप होनी जरूरी है। दूसरा क्या है, अक्रॉस द कंट्री जब हम स्कूलों में बच्चों को देख रहे हैं और पिछले 20-24 सालों में जिन बच्चों को 15 साल पहले मिली थी, आज वो खुद पेरेंट्स हैं और उनके बच्चे अब स्कूल्स में। सो फॉर मी, आई हैव ऑलवेज ट्राइड टू लुक एट इट दैट व्हेन टीचर इज एन एम्बेसडर ऑफ कल्चरल हेरिटेज, क्योंकि बच्चे किताबों से जितना सीखते हैं, लैपटॉप से जितना सीखते हैं, शायद टीवी से जितना सीखते हैं, उससे भी ज्यादा जीवन भर के लिए जो जीवन में उनके लोग उन्हें मिलते हैं, उनसे सीखते हैं। एंड दैट इज वाई आपको मैं ये बताना चाहूंगी टीचर्स कि आपकी जो पर्सनालिटी है ना, द वे यू टॉक, योर नॉलेज, योर रिलेशनशिप विथ योर चिल्ड्रन, दैट इज द ग्रेटेस्ट टीचर। एंड दैट इज वाई एक टीचर की कलम और एक टीचर के व्यक्तित्व को हम जानते हैं कि वो किसी भी किताब और किसी भी लैपटॉप से ज्यादा है। सो आई वांट कि इस 5 दिनों में आपको जितने तरह के रिसोर्सेज दिए जा रहे हैं, दे कैन हेल्प यू दैट यस मैम, आई विल बी एबल टू शेयर अ लार्जर पिक्चर ऑफ माय कंट्री, of my culture and my traditions with my students. That is what is your role as teacher, as a facilitator of culture. As you can see, cultural heritage is an expression of the ways of living developed by a community. Like Dr. Sandeep was today sharing some very simple everyday life rituals and situations of our culture. सिमिलरली हमारे जो कस्टम्स हैं, प्रैक्टिसेस हैं, हमारे जो प्लेसेस हैं, चाहे वो मॉन्यूमेंट्स हैं, वर्शिप के हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस हैं, हमारे संगीत, हमारी शादी ब्याह के गाने, हमारे फेस्टिवल्स, हम जिस तरह के कपड़े पहनते हैं, यू नो, वी हैव टू मेक द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ चिल्ड्रन रियलाइज दैट ऑल ऑफ दिस इज somewhere making us richer. और ये चीजों के पीछे जो भाव है, इनका जो कॉन्टेक्स्ट है, इनको करने के पीछे जो मानसिकता है, ये हमें समझनी है। और इसीलिए कॉलेजेस हो जहाँ पे हम स्टूडेंट से एडिक्शन की बात कर रहे हो, स्टूडेंट्स को जहाँ पे हम टीचर्स, आई हैव बीन अ मेंटर टू अ लॉट ऑफ प्रोफेसर्स इन द हायर एजुकेशन, एंड दैट इज वाई टीचर्स, चाहे वो स्कूल पब्लिक हो या प्राइवेट हो, गवर्नमेंट स्कूल्स की प्राइवेट स्कूल्स के साथ पार्टनरशिप हो, आंगनवाड़ी के कार्यकर्ता हो, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स हो, मैंने सभी के साथ कार्य किया है। और चाहे वो इंटरनेशनल स्कूल्स हो, जो इंडियन स्कूल सिस्टम्स को मिडिल ईस्ट में आप अगर जाएं तो आप देखेंगे कि मैंने दोहा में, दुबई में महसूस किया कि लोग बड़े प्राइड से कहते हैं मेरा बच्चा इंडियन स्कूल में पढ़ता है। और आप जानते हैं उसका मतलब क्या है? इंडियन स्कूल में चूंकि एकेडमिक स्टैंडर्ड इतना हाई है कि अगर मेरा बच्चा इंडियन स्कूल में पढ़ रहा है, इसका मतलब मेरे बच्चे में एकेडमिक कैलिबर ज्यादा है।
और देखिए ये है शुरुआत बदलती तस्वीर की कि आज इंडियन एजुकेशन सिस्टम जिसने वर्ल्ड लीडर्स दिए हैं, आज मल्टीनेशनल कंपनीज में टॉप 20 में से 13 के सीईओज इंडियंस हैं। तो हमारे जो ट्रेडिशनल स्कूलिंग सिस्टम है उसमें बहुत स्ट्रेंथ है और मेरा मानना है कि हमें उन स्ट्रेंथ्स को और ज्यादा शक्तिशाली बनाना है। That is why we want educators to be empowered. As you can see on your screen, this is a program under the Deputy Directorship of Dr. Sandeep Kumar with our guidance of our chairperson and the director. We had organized a 6-day training program, intensive and comprehensive in spite of Corona in the month of March. And a lot of teachers could come in here and this was an experiential learning program जहां हमने डिजिटल माध्यम और न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बहुत सी चीजों पे चर्चा करी, बहुत से रिसोर्स पर्सन्स को और जोड़ा कि हम अपने टीचर्स तक और क्या क्या चीजें पहुंचा सकते हैं। एंड दिस इज वेयर टीचर्स यू विल सी दैट सीसीआरटी ने डिजिटल लर्निंग को इनिशिएट किया और आप सब अब हमसे जुड़ रहे हैं और ये सीखने की, एक दूसरे को जानने की प्रक्रिया बढ़ती जा रही है। और इसी प्रक्रिया की कड़ी में आज हम फिर देख रहे हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के समय ये जो साल भर का कोरोना आया, इसमें जो शब्द हमें वापस से जोड़ने हैं वो है सिलेबस। सिलेबस तो हम पहले भी पढ़ा रहे थे, आप सभी टीचर्स को अपना अपना सब्जेक्ट मैटर बहुत अच्छी तरह आता है। अब उन सब्जेक्ट्स के साथ हम किस तरह से स्किल्स को जोड़ें। स्किल क्या है? हुनर है, हाथों में वो हुनर, शब्दों का वो चयन, और वो स्किल्स क्या है टीचर्स? प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, डिसीजन मेकिंग स्किल्स। आज एक बच्चे को स्कूल में डिसीजन लेना होता है, क्या सही है क्या गलत है, ये हम सिखाते हैं, यही वैल्यू सिस्टम है। फिर स्किल्स क्या आते हैं? जब बच्चा सोशल स्किल सीखता है, दूसरों के साथ आचार करना, हाउ डू आई बिहेव विद अडल्ट्स, हाउ डू आई बिहेव विद फ्रेंड्स। उसके बाद स्किल्स है प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो साइंस में जब आप न्यूमेरिकल्स देते हैं, बच्चा मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व करता है, उसी से उसके दिमाग में क्षमता बढ़ती है कि किस तरह से मैं जीवन में आने वाले प्रॉब्लम्स को भी फेस करूं और सॉल्व करूं, उनसे भागूं नहीं, उनसे डरूं नहीं। आप सब भाषा सिखाते हैं, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, तेलुगु, तमिल, असमी, बंगाली, हम बहुत रिच हैं भाषाओं में। और कल आपका राजभाषा नीति पर भी एक सेशन होगा। आप देखेंगे कि किस तरह से भाषा डेवलप होती है और भाषा किस तरह से एक इंसान के संस्कार, उसके पूरे समाज में उसको अपने को व्यक्त करने का एक माध्यम है। योर लैंग्वेज बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर आइडेंटिटी। और लैंग्वेज से रिलेटेड स्किल क्या है? कम्युनिकेशन स्किल। मैंने इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा, मैंने हिंदी पढ़ी, लेकिन आज मैं अगर हिंदी भाषा का सही व्याकरण इस्तेमाल करते हुए अपनी बात को व्यक्त ना कर सकूं, तो फिर मैंने सब्जेक्ट तो पढ़ा था, स्किल डेवलप नहीं करा। एंड दैट इज व्हाई टीचर्स, जब आप कल्चरल एम्बेसडर्स हैं, फैसिलिटेटर्स हैं कि बच्चों कल्चर, आर्ट, एस्थेटिक अपने देश के लिए प्राइड महसूस करें, तो आप समझिए यू आर स्किल ट्रेनर्स। आप सबने देखा होगा भारत में आज सबसे बड़ा हमारा एक प्राइम मिनिस्टर की तरफ से बहुत ज्यादा एम्फसाइज्ड है कौशल। और कौशल क्या है? नेशनल स्किल इंडेक्स। हमारे बच्चों को एजुकेशन मिल रही है, लेकिन अगर स्किल नहीं डेवलप हो रही है तो फिर वो आगे कैसे जीवन यापन करेंगे। और स्किल रोजगार भी देता है, स्किल स्ट्रेंथ भी देता है। स्किल आपको जिंदगी में हर परिस्थिति में कुछ करने का मौका देता है। और तीसरा है सोशल कनेक्ट। सो टीचर्स, आप कल्चरल एम्बेसडर तब बनते हैं जब आप सिलेबस के साथ स्किल्स डेवलप करें और बच्चों को उनके सोशल एनवायरनमेंट से, उनकी हिस्ट्री से और उनके चारों तरफ का जो उनका परिवेश है उससे कनेक्ट करें। इसीलिए आप देखिए, आप लैंग्वेज सीख रहे हैं, आप डांस, म्यूजिक को देखेंगे। कल हमने जब अपने मंदिरों को डॉक्टर सविता के लेक्चर में देखा, तो क्या हम सबको ये आत्मबोध हुआ कि नहीं कि ये बहुत प्राइड की चीज है। इतने हजारों साल पहले इनके पास कौन से औजार थे, कौन सा क्रेन था,
कौन से टूल्स थे कि इस तरह की इन्होंने आर्किटेक्चरल मॉन्यूमेंट्स को डिजाइन किया। तो यही है साइंटिफिक टेम्पर को कल्चरल प्राइड से, एथिक्स से और वैल्यूज से कनेक्ट करना, और यही टीचर एज अ कल्चरल एम्बेसडर करते हैं। I would like to congratulate all of you teachers. Let us give yourself a very very big hand. आप सबके लिए बहुत बहुत बड़ा सा, सारे लोग एक दूसरे के लिए ताली बजाइए, और ताली एक साथ बजाना अपने आप में भी एक एनर्जाइजर है, ये एक योग है। थैंक यू उर्वशी मैम, थैंक यू सो मेनी टीचर्स। और आप सबके लिए ये ताली है बिकॉज आपने पिछले 1.25 साल में गजब की ई लर्निंग करी। आप लोगों ने बहुत तेजी से टेक्नोलॉजी को सीखा है, हमारे स्कूलों में डिजिटल अपग्रेडेशन हुआ है, हमने अपने को जूम, ठीक है हमें तकलीफ आ रही है, टेक्निकल ग्लिचेस हैं, हमारे भारत के बहुत से प्रांतों में उस तरह की नेटवर्क फैसिलिटी नहीं अवेलेबल है। आज दिल्ली में भी होते हुए हमें सवेरे से नेटवर्क की प्रॉब्लम थी क्योंकि आज बहुत तेज बारिश हो रही है सवेरे से। बट इन सब के बावजूद हम प्रयत्नरत है, हम लगातार कार्यरत है, प्रयत्न कर रहे हैं। वी आर डिटरमिन्ड दैट वी आर गोइंग टू लर्न दीज न्यू टूल्स। यस और नो टीचर्स? And have you all not felt that ma'am actually technology can be a very good friend? Your classes can be recorded. You can send your classes to children where children can see whenever they have net connection and electricity. You can create so many worksheets and PowerPoint presentations. तो ये जो टेक्नोलॉजी है अब इसने आपको blended learning का माहौल दे दिया है। My younger son, he is a pass out of the same education system of India, and now he is doing his MS in Germany. Blended learning का आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ। जर्मनी एक बहुत ही विकसित देश है और मैं इस देश की बुराई भी जानती हूँ, यही वर्ल्ड वॉर और होलोकास्ट के लिए जिम्मेदार थे। लेकिन देखिए हिस्ट्री हमें ये भी सिखाती है कि इन्होंने किस तरह से अपनी उस एक बहुत बड़ी विडंबना को ओवरकम किया और आज दुनिया के बहुत विकसित टेक्नोलॉजिकली एडवांस देशों में है। और जर्मन से अगर आप बात करिए तो दे हैव अ वेरी हाई रिगार्ड फॉर देयर कल्चर, एंड दैट इज व्हाई इनकी जो एजुकेशन सिस्टम है, मैंने देखा अब मेरे बेटे को, माय सन इज एन इंजीनियर एंड नाउ ही इज डूइंग ऑटोमोबाइल डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी। जैसा आज हम देख रहे हैं कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बिना डीजल और पेट्रोल के चलने वाली गाड़ियों पे डिजाइन हो रहा है। ऑलरेडी टेस्ला के पास इलेक्ट्रिक कार्स हैं, तो मेरा बेटा उसी क्षेत्र में रिसर्च कर रहा है और एमटेक कर रहा है। अब उनकी ब्लेंडेड लर्निंग देखिए कैसे है। बच्चे को मंडे को एक वीडियो आ जाता है और वीडियो के साथ गाइडलाइंस दे दिए जाते हैं कि दिस इज अ मशीन ड्राइंग, यू आर सपोज टू स्टडी दिस ड्राइंग एंड अंडरस्टैंड। अब देखिए सेल्फ लर्निंग है, बच्चा वो 10 बार वीडियो देख सकता है, देख के समझे। उसके बाद उसको एक ईमेल आता है, जिस ईमेल में दिया रहता है कि ये जो मशीन आप देख रहे हैं 1973 में पहली बार इस मशीन को इजाद किया था फोर्ड कंपनी के सच एंड सच साइंटिस्ट। उसके बाद उसके नीचे 4-5 लिंक्स हैं। बच्चा यूट्यूब में जाके देख सकता है कि जब इस इंजन को गाड़ी में लगाया गया था, गाड़ी का सेल कितना बड़ा था, फोर्ड कंपनी ने कैसे लॉन्च किया था, जिस साइंटिस्ट ने, इंजीनियर ने इसको बनाया था उसको आप देख सकते हैं, उसकी बायोग्राफी पढ़ सकते हैं, उसके कमेंट्स पढ़ सकते हैं। आज वो इंजीनियर जिंदा नहीं है, पर 1973 की इतनी डिजिटली रिकॉर्डेड चीजें। नेक्स्ट लाइन आता है 1998 में जब मारुति ने गाड़ियां लॉन्च करी तो उन्होंने इस इंजन डिजाइन को बदला और उसके बाद उन्होंने ये बदलाव किए। उसके बाद फिर 4-5 लिंक हैं, बच्चे खुद उन लिंक्स पे जाएं और पढ़ें। वेडनेसडे को क्लासरूम है और ये क्लासरूम क्या है, 23 कंट्रीज के बच्चे लॉगिन कर रहे हैं और यहाँ टीचर नहीं है, सारे बच्चे आपस में बात कर सकते हैं। आप डिस्कस करिए, आपने मशीन ड्राइंग में क्या देखा, आपके साथ में बात करने वाला कोई स्वीडन से है, कोई नॉर्वे से है, कोई न्यूजीलैंड से है, कोई ऑस्ट्रेलिया से है। बट अच्छी बात यह है कि भारत के बच्चे इन बच्चों के साथ बिल्कुल बराबरी से डिस्कस कर रहे हैं और इनकी क्षमताओं और इनकी नॉलेज के लिए इनको रिस्पेक्ट मिलती है।
उसके बाद फ्राइडे को टीचर क्लास में आता है, 2 घंटे की डिजिटल क्लास है, सारे बच्चे इसमें हैं और 2 घंटे में बच्चे प्रेजेंटेशन करते हैं कि उनका नया आइडिया क्या है। टीचर प्रेजेंटेशंस को देखता जाता है और उनको गाइड करता है। दैट इज द टीचर्स रोल एज अ फैसिलिटेटर। और चूंकि 100 बच्चे हैं तो 2 घंटे में सबको चांस नहीं मिलेगा। तो मेरे बेटे का क्या काम है, जब तक उसकी चांस नहीं आती है, हर वो आदमी जो प्रेजेंट कर रहा है उसके प्रेजेंटेशन को देखे, नोट्स बनाए और सीखे कि हाँ ऐसा तो मैं भी सोच रहा था, मैंने भी तो अपने डिजाइन में यही किया है। अगर सर इसको गलत बता रहे हैं, इसका मतलब मेरे डिजाइन में भी ये गलत है, मुझे कुछ और ऑल्टरनेटिव सोचना है। अब देखिए, ये है थिंकिंग, क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, लैंग्वेज, सारी चीजों का समावेश है। उसके बाद क्लास खत्म होती है, टीचर समराइज करता है, गाइडलाइंस बताता है और बच्चों को सैटरडे को अपना प्रोजेक्ट सबमिट करना है, मंडे को नेक्स्ट वीडियो आएगा। और ये मैंने आपसे इसलिए कहा क्योंकि कोरोना के पहले भी वहां पढ़ाई ऐसे हो रही थी। तो कोरोना में क्या हुआ है, एक बहुत बड़ा एडवांटेज, आज बाल्टीमोर हो यूके में या बेल्जियम हो यूरोप में, बाल्टीमोर यूएसए में हो, बेल्जियम यूके में हो, या हमारे देश में यूपी का छोटा सा गांव बलिया हो, हम सब एक ही टेक्नोलॉजी के माध्यम से जुड़ रहे हैं। एंड टीचर्स, create this in your children, that technology is not only for watching YouTube video and entertainment and songs and dance. Technology is the greatest assistance for knowledge, and that is why आपको बहुत सारे रिसोर्सेज ट्रेनिंग में मिलेंगे। सीसीआरटी के बहुत से रिसोर्सेज हैं जो ऑनलाइन आप एक्सेस कर सकते हैं। हम लास्ट डे आपको काफी इनके बारे में डॉक्टर संदीप जानकारी देंगे। बट टीचर्स, माय रिक्वेस्ट टू यू इज, यू विल बी अ facilitator when you are alert, you are ready to adapt, and you accept that yes, now our teaching methods have to be for tomorrow. हमारे बच्चे जिस नई दुनिया में जा रहे हैं, हमें उस दुनिया के लिए बच्चों को सिखाना है। और इसके लिए जब हम प्रयास करें तो हमें पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ही चेंजेस लाने। सो पर्सनल ऑल्टरनेटिव्स हमने सीखे ना, आज कोरोना ने हमें जिंदगी के नए तरीके सिखा दिए, तो फिर आज एजुकेशन में भी और बच्चों की परवरिश में भी और इनके फ्यूचर में भी हमें एक बदलाव और चेंज लाना है। एंड दैट इज व्हाई, जैसे टीचर्स हमेशा क्वेश्चन पेपर्स बनाते हैं ना, तो मैं यही कहना चाहूंगी, टीचर्स के कुछ क्वेश्चंस हैं और मैं चाहूंगी कि आप इनको नोट कर ले क्योंकि इनके बारे में बहुत सारा रिसर्च करना जरूरी है। और टीचर्स के क्वेश्चंस क्या है? पहला क्वेश्चन है आईक्यू। आईक्यू क्या है? इंटेलिजेंस क्वेश्चन। और इंटेलिजेंस क्वेश्चन है हमारे दिमाग की सोचने की, समझने की, याद करने की, एनालाइज करने की, सॉल्व करने की क्षमता। तो आईक्यू तो टीचर्स ने हमेशा बढ़ाया है। स्कूलों में बच्चों को इतने तरह के प्रॉब्लम्स, क्वेश्चंस, असाइनमेंट्स, वर्कशीट्स, प्रोजेक्ट्स जो आप देते हैं, इनसे आईक्यू बढ़ता है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? ईक्यू, इमोशनल क्वेश्चन। जब हम दूसरों के साथ अपनी भावनाओं को समझ पाते हैं, हैप्पी, सैड, एंथुसियास्टिक, इंस्पायर्ड, डिटरमिन्ड, ये सारी क्या है? भावनात्मक शक्तियां हैं। You know, emotions are not our weakness. I am a psychologist. I do a lot of emotional competency work for managers and corporate leaders, along with educators. और मैं चाहती हूँ कि आप सब इस बात को महसूस करें कि इमोशंस जो हैं बच्चों के, उनको हैंडल करना सिखाना, सप्रेस करना नहीं, कंट्रोल करना नहीं, हैंडल करना। गुस्सा आएगा, पर हम उस गुस्से को क्या योग से, म्यूजिक से, आर्ट से एक सकारात्मक दृष्टि दे सकते हैं। तो फिर हम अपने कल्चरल एट्रीब्यूट से बच्चों की ईक्यू बढ़ा रहे हैं। एसक्यू, सोशल क्वेश्चन। सोशल क्वेश्चन क्या है? सामाजिक व्यवस्था। और देखिए, स्कूल और इंस्टीट्यूशंस बनाए ही इसीलिए गए थे क्योंकि एक परिवार बच्चे को समाज में दूसरे तरह के लोग जो उसके परिवार के नहीं हैं,
उनके साथ एडजस्टमेंट करना, डील करना सिखाना एक परिवार के लिए मुश्किल था। वो परिवार बच्चे को बेस दे सकता है, बच्चे को रूटीन दे सकता है, उसको संस्कार देता है, लेकिन सामाजिक व्यवस्था वो स्कूल है जो बच्चों को दूसरों के साथ डील करना सिखाता है। और इसीलिए आपकी जो ये कक्षाएं हैं ना, क्लास जिसमें 50, 55, 60 बच्चे अलग अलग घरों के बैठते हैं, ये जब एक दूसरे से लड़ते हैं, दोस्ती करते हैं, खेलते हैं, एक दूसरे के साथ स्कूल के प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो ये सारी चीजें बच्चों को सोशल सोसाइटी में दूसरों से डील करना सिखाती। और ये चारों क्वेश्चंस जो टीचर्स को डेवलप करते हैं ना, IQ, EQ और SQ, यही तीनों क्वेश्चंस आपको तभी डेवलप हो पाएंगे जब हम CQ लाएं। और CQ क्या है? कल्चरल क्वेश्चन। और CQ हमारे टीचर्स के लिए कल्चरल क्वेश्चन के साथ साथ क्या है? चेंज क्वेश्चन। जब हम बदलाव का साथ देंगे, उसको रेजिस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए इंसान की प्रवृत्ति ऐसी है, वी ऑल आर पीपल हु गेट इनटू कन्वीनियंस जोन। हमें जो चीज कन्वीनियंट लगती है हम उसी को करते रहते हैं। एक बार नोट्स बना लिया, अब हर साल उसी नोट से पढ़ा देते हैं। इसीलिए शायद हम किताबें भी नहीं बदलना चाहते। लेकिन समझिए, चेतना और लगातार परिवर्तन ही ग्रोथ है। बच्चों को हमें हमेशा चेंज के लिए तैयार करना है। और इसीलिए टीचर्स, आप देखिए कि एम आई चेंजिंग, कोरोना ने तो सब कुछ चेंज कराना, एक बड़ा सा धक्का दिया और हमारे रूटीन्स चेंज हो गए, हमारे क्लासरूम और स्कूल बंद हो गए। लेकिन देखिए, हमने डिजिटल लर्निंग शुरू कर दी, तो हम चेंज होते हैं। लेकिन अगर हम चेंज को आगे बढ़ के खुद स्वीकार करें, खुद इस ट्रेनिंग के बाद अपनी क्लासरूम्स में चेंज लाएं, अपनी क्लासरूम में एक वीडियो दिखाएं, अपने क्लासरूम में बच्चों से साइंस, मैथ्स, फिजिक्स, इंग्लिश, हिंदी, तमिल पढ़ाने के साथ साथ कल्चरल एस्पेक्ट्स ले आए, तो फिर हमारे स्कूलों से पास होने वाले हर बच्चे का कल्चरल कोशेंट भी हाई हो। एंड दैट इज व्हाई टीचर्स, देखिए ये जो हमने यहाँ पे द्वारका में CCRT के हेड ऑफिस के ऑडिटोरियम में जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स किए, हमने यहाँ नेचुरली ऑफलाइन था तो बहुत सी एक्टिविटीज करी। टीचर्स को आर्ट इंटीग्रेशन, क्रिएटिविटी, किस तरह से आप बच्चों को डिफरेंट तरह की एक्टिविटी दे सकते हैं, किस तरह से आप बच्चे को लैंग्वेज एंड एक्सप्रेशन में ये दे सकते हैं कि आज आप जो ऐसे लिख रहे हैं उसके लास्ट पैरा में आपको अपनी बात किन्हीं भारत की 3 और भाषाओं में भी लिखने की कोशिश करनी है। क्या हम क्लासरूम में ग्रुप्स बना सकते हैं? क्या हम हर वीक एक असेंबली कर सकते हैं जिसमें बाई रोटेशन इंग्लिश और हिंदी के साथ साथ हम किसी और प्रांतीय भाषा में भी बात करें? कल ही हमारे उड़ीसा का बहुत बड़ा पर्व था रथ यात्रा, आप सभी को उसकी बधाई। और रथ यात्रा भी देखिए एक चेंज का फेस्टिवल है, सीजन बदलता है, भगवान को भी मंदिर से बाहर लाते हैं और रथ से उनको ले जाते हैं और फिर वापस लाते हैं। इट इज सिंबॉलिक ऑफ चेंज। दैट इज व्हाई टीचर्स, कॉमन क्लासरूम सिचुएशंस में आप जिस तरह से इंस्ट्रक्शंस बच्चों को दे रहे हैं, आप जो अपने होमवर्क और असाइनमेंट बना रहे हैं, आप जो बच्चों को चित्र दिखा रहे हैं, कोशिश करिए कि अगली बार हाइट और ब्रेथ, लेंथ और ब्रेथ और एरिया पढ़ाते समय क्या मैं उनको भारत के किसी मॉन्यूमेंट या टेम्पल का पिक्चर दिखा के भी बता सकता हूँ कि सोचो इतने हजारों साल पहले उनको पाइथागोरस थ्योरम से भी ज्यादा पता था, तभी उन्होंने ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाए। और उसके बाद बच्चों में एक सेंस पैदा करिए कि अब तुम खुद ढूंढो, खुद पता करो इसके बारे में, गूगल पे जाओ और अगली बार मोबाइल फोन उठा के गेम खेलने की जगह इस मॉन्यूमेंट के बारे में जाके पढ़ो। That is where you are a teacher who's facilitating education for children. Educators who will use various languages in classroom is a dream. और आप जानते हैं इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा मापदंड है अगर बच्चे भाषाएं सीख सकें। So language,
हमारे जो ट्रेडिशंस हैं, आप बच्चों को बताइए कि कल रथ यात्रा थी, परसों बिहू था, उसके बाद हमारे लोहड़ी होता है, तो हमारे यहाँ ये मकर संक्रांति भारत के हर प्रांत में अलग अलग नाम से बनाई जाती है। इसका साइंटिफिक रीजन क्या है? इस दिन सन किस तरह से मूव करता है, प्लैनेटरी पोजीशन क्या है, और इसका मनुष्य के जीवन पे क्या असर है। तो मुझे लगता है हर सब्जेक्ट टीचर अपने अपने सब्जेक्ट से इन कल्चरल एस्पेक्ट्स को इंटीग्रेट कर सकते हैं। और वही है, हम ट्रेडिशंस में कुछ चीजें जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब हम अपने ट्रेडिशंस का साइंटिफिक और सोशल इंपॉर्टेंस भूल गए और कुछ चीजें मात्र करने के लिए करते रहे, तो वो चीजों में अंधविश्वास और दिखावन आ गया। हमें उसे हटाना है। बिलीफ सिस्टम, हमें क्यों भरोसा है? वैल्यू सिस्टम्स, आप देखिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने लाइफ स्किल्स और वैल्यूज एजुकेशन पे बहुत ध्यान दिया। आज हम वैल्यू सिस्टम्स की जब बात करते हैं तो मुझे याद है बचपन में मेरी दादी की सुनाई हुई जातक कथाएं, और जब मैंने बड़े होके पढ़ा कि ये हितोपदेश किसी राजा ने अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए, और वो बच्चा जब क्लासरूम में वेद पुराण और इनसे नहीं पढ़ पा रहा था, तो कैसे ये कहानियां बनाई गई थी जिसमें हर कहानी में जीवन का कुछ सत्य है। वी लर्न अबाउट सोशल बिहेवियर। हैव वी फॉरगॉटन देम? Why can't we have a storytelling session? Why can't we tell these stories to children? Why can't we have children enacting some of these stories rather than only having children enacting a Shakespeare play? Let us blend these teachers. सेलिब्रेशन स्कूल्स में मनाए जाते हैं। मुझे पता है आप सभी के स्कूलों में आप बच्चों को बहुत तरह के कल्चरल प्रोग्राम्स में इन्वॉल्व करते हैं, और इसीलिए आज हमारे बच्चे जो भी कल्चर के बारे में सीख रहे हैं उसमें स्कूल का बहुत बड़ा योगदान है। इसी योगदान में हम आपके दायित्व को बढ़ाना चाहते हैं। कोई और संस्था ये काम नहीं कर सकती है जो कि टीचर्स और स्कूल कर सकते हैं। म्यूजिक, आर्ट, मूवीज ने भी दिखाने की कोशिश की है। हमारे यहाँ हजारों म्यूजियम्स हैं, लेकिन एक स्कूल का एजुकेशनल ट्रिप ही बच्चे को म्यूजियम में ले जाता है, और अगर उस म्यूजियम में जाने पर टीचर बच्चे के अंदर जिज्ञासा पैदा कर सके, उसको इंफॉर्मेशन दे सके, उसके अंदर प्राइड पैदा करे कि ये जो तुम मूर्ति देख रहे हो, सोचो उस आर्टिस्ट में कितनी इंटेलिजेंस है कि उसने एक पत्थर के अंदर ये सोचा। अजंता अलोरा कैसे एक पूरे पहाड़ को डिजाइन किया होगा, कैसे उन्होंने ड्राइंग बनाई थी कि पहाड़ को काटते 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 उन्होंने पूरा मंदिर, स्टैचू, पिलर्स हर कुछ बना दी। What was the skill? किस तरह की इमेजिनेशन एबिलिटी थी। अगर हम ये अपने बच्चों में पैदा कर सकें तो फिर आप देखिए भारत का जो रूप था विश्व गुरु होने का, वो कोई नहीं रोक सकता। एंड दैट इज वाई मैं देखती हूँ ना, आज जो इकोनॉमिक सेक्टर है वहां पे ग्लोबल इकोनॉमीज में आज भारत को आप लाइक कर सकते हैं, आप भारत को डिसलाइक कर सकते हैं। हमारे यहाँ देश में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें नीचा करती हैं, लेकिन उसके बावजूद आज विश्व में कोई भी भारत को नजरअंदाज नहीं कर सकता। और यही है एक बदलती पृष्ठभूमि। We already have a background that world is changing the way they look at India. What you see today is changing. We are no longer a British colony. We are no longer a underdeveloped country. We are one of the fastest growing nation with the largest population of youth. And that is why this is a time of power. That is why I wholeheartedly welcome the National Education Policy, जिसने काफी सारे फोकस एरियाज किए हैं, स्कूल और हायर एजुकेशन को इंटीग्रेट किया है। एजुकेशन में वो बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे एजुकेशन ज्यादा होलिस्टिक हो, हमारे बच्चों को कल के लिए तैयार करे, उनको वैल्यूज दे ताकि वो अंदर से सशक्त बने। एंड दैट इज व्हाई दिस इज द सिलेबस व्हिच नीड्स टू बी इंटीग्रेटेड टीचर्स। आर्ट, I loved this class of a maths teacher जिसने मैथ्स पढ़ाने के साथ साथ उन्होंने बहुत सारे इंडियन स्ट्रक्चर्स को लगातार बच्चों को दिखाया और कहा कि ये जो आप ज्योमेट्री में एंगल्स पढ़ रहे हैं ना,
अगर आप इन मॉन्यूमेंट्स को देखें, चाहे वो दिल्ली का लाल किला है, चाहे वो बुलंद दरवाजा है, चाहे वो सलीम चिश्ती की दरगाह है, आप देखिए कैसे उन्होंने क्वाड्रेंगल्स बनाए हैं, कैसे उन्होंने इक्विलैटरल ट्रायंगल्स का इस्तेमाल आर्किटेक्चर में किया। सिर्फ इतना ही करना है और यही है इंटीग्रेशन। डांस एंड म्यूजिक को उन्होंने इंटरटेनमेंट की जगह, I really like this teacher who was teaching social sciences and she said, when you learn to live in society, और हमारी सोसाइटी कैसे बनी है, तो आप हमारे म्यूजिक देखिए, हमारा डांस देखिए, you will understand that how dance was bringing a community together and teaching the value of harmony and love, because people earlier were into agriculture, और एग्रीकल्चर में हर इंसान को दूसरे की जरूरत थी, तो लोग मिलके डांस करते थे, चाहे वो हार्वेस्ट फेस्टिवल बिहू हो या हार्वेस्ट फेस्टिवल लोहड़ी हो। और ये सेलिब्रेशंस क्या थे? ये धरती की पूजा थी, बिकॉज इट वाज लिविंग इन हार्मनी विद नेचर। Isn't it so wonderful that our culture teaches so much harmony and peace, what today the world needs? Can we bring all these aspects into a child's life as a life skill while teaching in our classroom? I am sure many of you would have ideas to do that. And today, talking about this, we are trying. Can you take back some of these ideas? Can we evolve a cultural calendar for schools? कितना अच्छा हो अगर हम अपने स्कूल में हम एक कैलेंडर इस्तेमाल करते हैं। मुझे थोड़ी सी इस बात की नाराजगी है कि हम क्यों रोमन एंड जॉर्जियन कैलेंडर इस्तेमाल करते हैं, हम क्यों नहीं इंडियन कैलेंडर इस्तेमाल करते हैं। हमारा विक्रम संवत कैलेंडर जिसमें नक्षत्र हैं, ग्रहों की जो मूवमेंट है, चांद का 2 पार्ट, 15 दिन का क्वार्टर जब चांद बढ़ रहा है और जब चांद घट रहा है, अमावस्या हो या एकादशी हो, these were all very scientific. Can we use our own Indian calendars? I have loved the kind of scientific predictions which are there in a Tamilian calendar. I have seen the Bengali calendar because I have stayed a lot of my career in Calcutta. Teachers, please bring in your regional calendars, your Indian calendars into your classroom. और हर दिन इंग्लिश की डेट के साथ बच्चों को हिंदी का महीना और कैलेंडर को बताइए। 5 मिनट का समय अगर हम हर दिन बच्चों को स्कूल असेंबली में इसके लिए दें, तो आप देखिए बच्चों का सेंस ऑफ प्राइड एंड अंडरस्टैंडिंग अबाउट देयर ओन कैलेंडर विल बी सो हाई। और कल्चरल कैलेंडर क्या है? हर महीने हमारे स्कूल में, जैसे कि एकेडमिक्स है, स्कूल में असाइनमेंट्स हैं, एग्जाम की डेट्स हैं, हम 15 अगस्त मनाते हैं, 2 अक्टूबर मनाते हैं, ठीक उसी तरह से क्या हम हर महीने के कम से कम 20 दिन में कल्चर से रिलेटेड क्या चीजें हैं उनको डिफाइन कर सकते हैं। और मॉर्निंग असेंबली में या टीचर जब अटेंडेंस लेता है उसके बाद अगर हम 5 मिनट का वार्तालाप कर सके, तो will it not be very easy to integrate cultural education? I would like all of you on the group to share today if you have ideas that yes ma'am this can be done. How many of you right now feel कि हाँ मैम ये किया जा सकता है? और बड़ी क्लासेस में how many of you feel कि yes ma'am we can do this? This is going to enhance a lot of awareness of culture to children. Thank you so much teachers. I can see Tripti ma'am, Vijay Singh sir, Janvi ma'am, Santosh sir, बहुत सुंदर. Thank you for being with me. Desai ma'am, Darshan Kaur ma'am from Mohali, thank you so much for raising your hands. It is helping me to see कि yes, मेरी बात आसाम से लेके पंजाब तक और गुजरात से लेकर कलकत्ता तक पहुंच रही है आप सबके साथ। और यही एक टीचर एज कल्चरल एम्बेसडर्स एंड फैसिलिटेटर्स में हमारी आपसे अपेक्षा है। बिकॉज ये 5 दिन का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है ये एक शुरुआत है, और इससे भी ज्यादा जरूरी क्या है कि इस शुरुआत के साथ साथ हम इस प्रयास को लगातार जारी रखें।
कल्चरल कैलेंडर के साथ ही हमारा एक और प्रयास है, क्या हम स्कूलों में कल्चरल क्लब्स बना सकते हैं। देखिए, जब हमने स्कूल में इन्वायरमेंटल क्लब्स बनाए तो आज स्वच्छता मिशन में भी स्कूलों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। किस तरह से आपने बच्चों के साथ एक स्वच्छ प्रांगण को, स्वच्छता में सम्मान की भावना लाई। स्वच्छता मिशन was not about only cleaning toilets or cleaning your place. Swachhata mission was more about bringing in a self-respect and teaching children, and we also adopting that when we clean our surroundings, it brings in respect, it brings in better quality of life. And that is why teachers, I wish when you are in Delhi, please go and visit Swachhata Kendra. It is the story of 1 year of successful mission of Swachhata and how international community has appreciated this. छोटी सी चीज से बदलाव आता है। और मैंने देखा जब हम स्मार्ट सिटी इंदौर गए, आई वॉज देयर ऑन अ कल्चरल एंड एजुकेशनल ट्रिप एंड आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड that why Ambikapur, a small city, has become a model city, because वहां मैंने देखा कि लोग, जब किसी ने कहा कि कूड़े वाला आया है तो घर की माँ ने पलट के कहा, बेटा वो कूड़े वाला नहीं है, वो सफाई वाला है, कूड़े वाले तो हम हैं क्योंकि कूड़ा हम कर रहे हैं। अब देखिए, ये एक छोटी सी चीज है लेकिन इससे पूरा परसेप्शन बदल जाता है। तो जब मैंने देखा कि मैंने किसी से कुछ सामान खरीदा इंदौर में और उसने कहा कि मैडम आपके पास थैला है, मैंने कहा नहीं थैला तो नहीं है। उसने तराजू नीचे रख दिया, बोला मैडम हम लोग प्लास्टिक का कोई भी थैला नहीं देते हैं, आप थैला लेके आइए, आगे दुकान है वहां कपड़े का थैला मिल जाएगा, ले आइए तो मैं आपको सामान दे दूंगा। ये जो एक सब्जी बेचने वाले में भी सेंस ऑफ एक नैतिक दायित्व, सिविल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मेरा शहर है और मैं पन्नी देके इसमें गंदगी नहीं फैलाऊंगा, दिस इज वैल्यू सिस्टम। तो मैं चाहूंगी कि हमारे स्कूल कल्चरल क्लब्स क्रिएट करें, आपका जो भी रीजनल आर्ट फॉर्म है उसको रिवाइव करें, चाहे वो पॉटरी हो, टेराकोटा हो, पपेट्स हो, जो भी चीजें हैं, और बच्चों से वो बनवाएं, क्योंकि बच्चे जब इन चीजों को अपने हाथों से बनाएंगे, स्कूल में इसके लिए टीचर से उनको प्रशंसा मिलेगी, तब ये जीवन भर के लिए उनका एक धरोहर हो जाएगी। जैसे कि अगर मैंने पेड़ लगाया है और उस पेड़ को रोज पानी और सींचा है तो फिर उस पेड़ की रक्षा भी मैं करता हूँ और उस पेड़ से मुझे प्यार और अपनापन होता है। इसीलिए जरूरी है कि हम अपने बच्चों को आज उनकी किशोर अवस्था से इस तरह की चीजों से जोड़ें जो उनके जीवन में लगातार उनकी जीवन शैली में आ जाए। और यहाँ पे मैं कहूंगी कि अपनी गलतियों से सीखना भी बहुत जरूरी है। So teachers, cultural calendar for schools, using your own calendars and bringing it for school, creating cultural clubs for awareness, and taking precautions and initiatives to revive the regional art form. Creating more educational trips, which should not be to go and watch a movie or go to a mall. Rather, it should be go and visit a place which will show you our culture art. Please invite local artisans in the school from time to time. Give them respect and honor and help children to see that these people, the master craftsmen, जो इनके हाथों में हुनर है, ये किसी भी तरह का पैसा या फैक्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग इसको रिप्लेस नहीं कर सकता। मैं जब अपने बच्चों को लेके कश्मीर गई थी तो मैंने एक पूरा दिन बिताया जहां मैंने जाके देखा कि कैसे सिल्क कारपेट्स बनते थे और कैसे एक समय था जहां कश्मीर के कारपेट्स ऑल ओवर वर्ल्ड में सिल्क कारपेट्स वर फेमस। और इतना फाइन काम है, हाथों का, आंखों का करिश्मा है उसको बनाना। लेकिन आज देखिए मशीनी दौर में हम उसके डिजाइन को कॉपी करके हम नायलॉन के और सिंथेटिक कारपेट्स बनाते जा रहे हैं और अपने इन मास्टर क्राफ्ट्समैन के प्रति हम उदासीन हैं। सो जरूरत है कि स्कूल्स इस मुहिम में जुड़ें और हम अपने मास्टर क्राफ्ट्समैन को इज्जत दें, सराहना दें, उनके इस हुनर को जिंदा रखें। लैंग्वेज लैब्स फॉर ट्रेनिंग इन इंडियन लैंग्वेजेस।
दिस इज ऑल्सो समथिंग, अगर स्कूल्स जो हैं डिजिटल माध्यम से आप किसी भी भाषा की क्लिप को सुना सकते हैं, so this is going to also help our schools to become better. लैंग्वेज लैब्स का इस्तेमाल करिए कि हमारे बच्चे कम से कम इंग्लिश, हिंदी और अपनी मातृभाषा के अलावा एक और भाषा सीख सके। मेरे बच्चों की एजुकेशन बंगाल में हुई और मुझे बहुत अच्छा लगा कि बंगाल में चूंकि लैंग्वेज में बंगाली पढ़ना कंपलसरी था, मेरे दोनों ही बच्चे बंगाली बोल सकते हैं। और देखिए, बांग्ला बोलने से और बांग्ला पढ़ने की हुनर रखने से आज क्या है, आज चाहे वो शरद चंद्र के उपन्यास थे या रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि थी, मैंने भी गीतांजलि का ट्रांसलेशन पढ़ा है, लेकिन शायद गीतांजलि की जो खूबसूरती बंगाली भाषा में अभिव्यक्त है उससे मैं वंचित रही, क्योंकि मुझे बंगाली नहीं आती। तो कोशिश करिए आप एज टीचर्स कि आपके अपने बच्चे भी कम से कम भारत की 2 भाषाएं सीखें और हम अपने स्कूलों में भारतीय भाषाओं में ज्यादा से ज्यादा चीजों को इस्तेमाल करें, बच्चों को प्रेरित करें और बताएं कि हाँ, कि आपको अपनी भाषा बोलनी है, अपनी भाषा को समझना है और भारत की अन्य भाषाओं को भी अपना समझना है। हेरिटेज एजुकेशन किट ये भी एक तरीका है जिससे आप बच्चों को, इसमें केस स्टडीज दिए जा सकते हैं, बच्चों के साथ आप छोटे प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं, बच्चों को एजुकेशनल टूर्स पे ले जा सकते हैं। और ये जो चीजें हैं, ये अगर हम अपने स्कूल करिकुलम में किसी भी तरह से को करिकुलर में ले आए, बच्चों को रोल प्लेस करना, ड्रामा और थिएटर, आज आप इसी ट्रेनिंग्स में पपेट्री भी देखेंगे। हमने आपके लिए एक स्टोरी टेलिंग का भी सेशन रखा है ताकि आप इन सब विधाओं को महसूस करें, और जब महसूस करने से आपके मन में ये आए कि मैम ये तो किया जा सकता है स्कूल में, तभी CCRT की ये ट्रेनिंग सफल है। न्यू डायमेंशंस फॉर एजुकेटर्स, और ये जितनी भी चीजें हमने आपको यहाँ बताई, इनके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है ये है। ये स्लाइड मैंने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से ली है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में उन्होंने कहा है कि जब हम सब्जेक्ट्स के साथ स्किल्स को इंटीग्रेट करें, समावेश करें, कोलैबोरेट करें, तो क्या क्या चीजें हमें डेवलप करनी चाहिए बच्चों में? साइंटिफिक टेम्पर, और ये क्या है? जिज्ञासा। बच्चों का साइंस का सिर्फ फॉर्मूला याद करना ही साइंटिफिक नॉलेज नहीं है। साइंटिफिक टेम्पर का मतलब है बच्चों में क्यूरियोसिटी होना, किसी चीज को ढूंढना, रिसर्च करना, उसके बारे में जानना और कुछ नया बनाना। आर्ट एंड एस्थेटिक्स, इनका क्या महत्व है? ये इंसान के इमोशनल एस्पेक्ट्स को दिखाती है, और इसीलिए आर्ट एंड साइंस दोनों ही सिक्के के 2 पहलू की तरह है। ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन, लिपियां, भारत की जितनी भी भाषाएं जिनके बारे में मैंने बात करी, इन सब के साथ फिजिकल एजुकेशन, चाहे योग है, स्पोर्ट्स है, खेलना है, दौड़ना है, ये बच्चों के फिजिकल डेवलपमेंट, इनकी फिजिकल वेलबीइंग और इनके पूर्ण विकास के लिए पूर्णतः महत्वपूर्ण है। इसीलिए लगातार स्कूलों में खेलने की हर तरह का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, किसी भी समस्या का समाधान कर पाना। वोकेशनल एक्सपोजर, हमारी शिक्षा ऐसी हो कि इस शिक्षा को पूरी करने के बाद बच्चा अपने जीवन को यापन करने के किसी न किसी तरह के स्किल को सीख सके, तभी शिक्षा का पूरा महत्व है। डिजिटल लिटरेसी, जो आज कोरोना ने बड़ी तेजी से ला दिया है, हम सब अब डिजिटल एजुकेटर्स हैं, डिजिटल लर्नर्स हैं, तो हमें भी अपने बच्चों को लगातार इस नई टेक्नोलॉजी से ना डरना है, ना इग्नोर करना है, ना ये सोचना है कि कोरोना चला जाएगा, वी विल बी बैक टू नॉर्मल। अब कोई पीछे नहीं जाना है। वी आर नॉट गोइंग बैक टू नॉर्मल टीचर्स, वी आर गोइंग फॉरवर्ड। एंड व्हाट इज गोइंग फॉरवर्ड? Going forward is, let us look at new things. IQ, EQ, SQ, and CQ. Cultural quotients, and teachers having the change mindset to move towards cultural integration in everyday teaching.
That is why knowledge of India has become the most important syllabus today. And that is why teachers, I want each one of you, आप सब सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं और आप सब अपने अपने सब्जेक्ट्स के मास्टर्स हैं। तो अब मेरी आपसे गुजारिश है कि सोचिए कि आप अपने सब्जेक्ट्स में जो आपका सिलेबस है उसको पढ़ाने के साथ साथ किस तरह से आप इन चीजों का समावेश कर सकते हैं। आई एम श्योर यू विल हैव मेनी क्रिएटिव आइडियाज, और इसीलिए आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल द टीचर्स जिन्होंने अपने वीडियो विंडोज खोल रखे हैं। हम 176 people we are right now connected and so many of you have your windows open. याद रखिए, आज के इस डिजिटल वर्ल्ड में ये जो ओपन विंडोज हैं, यही विंडोज हमें दुनिया से जोड़ रहे हैं और हमें भी अपनी सोच के विंडोज को खोलना है। We have to be a part of this very fast changing world and bring in these newer aspects. If there is any thing which teachers you have been doing in your classrooms, please do share with us. We will be very happy to collect your best practices under this program. And yes, when you are cultural educators and facilitators, एक कार्टून मुझे दिखा था और मुझे लगा कि शायद ये हमारी स्थिति को बयान कर सकता है। हमारी जो ट्रेडिशनल पद्धति है पढ़ाने की, उसमें 10th बच्चे को एक पहाड़ की तरह लगता है और लगता है चलो 10th पास कर लिया। उसके बाद वो दूसरा पहाड़ सामने आ जाता है 12वीं का, कि अब हमें 12वीं की बोर्ड परीक्षा पास करनी। 12वीं की परीक्षा पास करके कॉलेज एक दूसरा पहाड़ लगता है, और जब हम कॉलेज का पहाड़ पास करते हैं तो दुनिया कैसी नजर आती है? जैसे दुनिया में तो बहुत सी और चीजें चाहिए, उसके लिए तो मैं तैयारी नहीं। और ये जो डिस्कनेक्ट है टीचर्स, हमें यही मिटाना है। बच्चे की स्कूल की जो पढ़ाई है और उससे जब वो कॉलेज जाता है और फिर जब जीवन में उतरता है तो ये ब्लेंड होने हैं, और इसीलिए स्किल्स ज्यादा जरूरी है, नॉट ओनली सब्जेक्ट्स। आज के इस बदलते परिवेश में बच्चों पे विश्वास करना बहुत जरूरी है, बिकॉज आज हमारे बच्चे स्मार्ट हैं, टैलेंटेड हैं। आप में से कितने लोग मानते हैं कि हाँ मैम, मेरे घर में जो बच्चा है वो मेरे से ज्यादा टेक्नोलॉजी जानता है? बताइए। मैंने तो जितना कुछ भी जूम सीखा है अपने बेटे से ही सीखा है। एंड दैट इज व्हाई गिविंग चिल्ड्रन रिस्पॉन्सिबिलिटी, बच्चों को काम दीजिए, बच्चों से छोटी छोटी चीजें कराइए। क्लब बना रहे हैं, रोल प्ले करना है, ड्रामा करना है, रिसर्च करना है। बच्चे, हम लोग मंडे को असेंबली में इस बारे में बात करेंगे, बच्चों को दीजिए, वो खोज के लाएंगे। बच्चों को लगाइए, उनके अंदर क्षमता भी है, उनमें एंथुसियाज्म भी है, एनर्जी भी है, और आपके गाइडेंस में बच्चे बिल्कुल वानर सेना की तरह काम कर सकते हैं। सो प्लीज गिव देम रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिल्ड रेजिलियंस। मेरी सबसे बड़ी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आज हमें बच्चों में रेजिलियंस डेवलप करना है। और रेजिलियंस क्या है? बच्चे बहुत जल्दी आजकल हार मान रहे हैं। क्लास में देखिए, अगर उनको पता है कि राकेश को फर्स्ट प्राइज मिलेगा तो दूसरा बच्चा उसमें प्रतियोगिता में नाम ही नहीं देगा। अगर बच्चा लूडो भी खेल रहा है और उसकी गोटी कट गई तो कहेगा हम नहीं खेलेंगे, अगर मेरी गोटी कटेगी तो मैं नहीं खेलूंगी। तो कहीं ना कहीं हम अपने बच्चों को हर समय जो उनकी इच्छा है, माँ बाप भी ये गलती कर रहे हैं, हर इच्छा पूरी कर देना अच्छी पेरेंटिंग नहीं है। और यहीं पे टीचर है जो पूरी क्लास का पेरेंट है, और उसको ये क्षमता लानी है कि नहीं, आप इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हार सकते हैं, दूसरा रास्ता है, कोशिश करिए। इसीलिए बच्चों को पजल्स कराना, बच्चे थिंकिंग गेम्स खेलें, बच्चे वोकैबुलरी डेवलप करें, और बच्चे अपने हाथों से काम करें। इनसे बच्चों में रेजिलियंस डेवलप होगी, बच्चे इतनी जल्दी हारेंगे नहीं। मेरा अपना पूरा काम, जब मैंने एमएस किया था काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपी में, तो मैंने टीन सुसाइड पे रिसर्च किया। क्यों हमारे यहाँ 14 से 18-19 साल की उम्र के बच्चे सुसाइड कर ले रहे हैं? क्या खाली उसका रीजन एकेडमिक प्रेशर और एग्जाम फेलियर है? ऐसा नहीं है।
इसका बहुत बड़ा रीजन है हम जिस तरह से बच्चों को सिर्फ एक ही दिशा में प्रेरित कर रहे हैं। सारे बच्चों को हम कह रहे हैं कि बस यही एक सक्सेस है, इंजीनियर और डॉक्टर बनना। बच्चे के अंदर आर्ट नहीं है, म्यूजिक नहीं है, उसको अपने में जॉय नहीं है, नेशनल प्राइड नहीं है, उसको अपने एनवायरनमेंट के बारे में नॉलेज नहीं है, उसको अपने कल्चर और वैल्यू सिस्टम नहीं पता है। तो ये सारी चीजें बच्चे को इतना खोखला कर दे रही हैं कि वो खाली एक अंधी दौड़ में भाग रहा है, और जैसे ही एक हल्का सा हवा का झोंका आता है वो पेड़ के, उस दीमक लगे पेड़ की तरह गिर जाता है। तो ये दीमक क्यों लग रही है? क्योंकि हमने अंदर से बच्चों को सिर्फ सुख सुविधाएं दे रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि बस बच्चे आसानी से जल्दी से जो चीज कर ले उसी को करें। सो टीचर्स, बिल्ड रेजिलियंस अपने बच्चों में भी और अपनी क्लास के बच्चों में भी। लेट देम टेक अ हार्ड रूल, लेट देम फाइट, लेट देम स्ट्रगल। तभी प्रकृति का नियम यही है। अगर आप एक बटरफ्लाई को देखें तो वो जब प्यूपा रहता है, अगर आप उस प्यूपा के कवर को काट दीजिए तो आप देखिएगा कि उसमें से निकली हुई बटरफ्लाई उड़ नहीं पाती, क्योंकि जब प्यूपा स्ट्रगल करता है उससे निकलने के लिए तो उसके पंखों में सर्कुलेशन होता है ब्लड का, और वही उसके पंखों को वो शक्ति देता है कि जब वो प्यूपा से बाहर निकलता है तो वो बटरफ्लाई उड़ती रहती है और उसके पंख पूरी तरह से उसके कंट्रोल में है। हमें भी अपने बच्चों को काम कराना है, उनको चीजों के लिए प्रेरित करना है और तुरंत हिम्मत ना हारें, इसके लिए प्रयास करना है। टीच देम टू डील। और इसीलिए रियल वर्ल्ड और वर्चुअल वर्ल्ड के बीच में बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। मैं हमेशा पेरेंट्स के लिए भी सेशंस करती हूँ, टीचर्स के लिए भी करती हूँ और बच्चों के साथ लगातार बात करती हूँ। मैंने बच्चों के साथ उनकी बहुत सारी परेशानियों को बहुत करीब से देखा है टीचर्स, और इसीलिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में ये जो चीजें हैं, जो आज सीसीआरटी के प्लेटफॉर्म से हम आपको कल्चरल एस्पेक्ट दे रहे हैं, मैं बहुत गहराई से महसूस करती हूँ कि ये चीजें जब बच्चों को अंदर से मजबूत बनाएंगी तो फिर आंधियां आने पर हमारे बच्चे नहीं गिरेंगे। क्योंकि आप देखिए आंधी तूफान आने पर वो कौन से पेड़ हैं जो खड़े रहते हैं? Which are the trees which stand tall and they face all these thunderstorms? That is our strong trees, the trees which have deep roots. वो trees जिन पे बहुत फल लगे हों वो जरूरी नहीं है कि बहुत strong। और deep roots कहाँ से आएगा? हमारे culture से, हमारे tradition से आएगा, national pride से आएगा। So let us today again pledge, help your children. Nowadays due to corona, children are at home, they are missing school, they are not meeting friends, there is very less social interaction. I am sure by the time it is month of August, September, शायद हम इस कोरोना काल के फिजिकल डिस्टेंसिंग, अब वायरस से बचने के लिए जो हमें करना था उससे बाहर आएंगे। और इसीलिए ये समय है कि हम अपने बच्चों को तैयार करें, उनके साथ और बातचीत करें, उनके अंदर ऑप्टिमिज्म रखें और बच्चों में एप्रिसिएशन लाएं। बच्चों को सिखाइए कि वो किस तरह से अपने चारों तरफ के परिवेश में एप्रिसिएशन सीखें। आजकल मुझे तकलीफ होती है देख के कि जो बच्चे जिनके पास बहुत तरह की सुविधाएं हैं वो भी बहुत जल्दी ये बोल देते हैं, मैं बोर हो गया, अब मैं क्या करूं, मेरे पास करने को कुछ नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं शायद ये बच्चे अपने अलावा अपने पर्यावरण, अपने समाज, अपनी कम्युनिटी, अपने परिवार के लिए कुछ करने की क्षमता कम करते हैं। तो टीचर्स, आपका आर्ट, कल्चर, म्यूजिक, ये सारे माध्यम बच्चों के अंदर बेटर सोशल रिलेशनशिप्स ही बनाएंगे। और आज भारत को वापस अगर विश्व गुरु बनना है और हमारे बच्चों को विश्व भर के लोगों से इंटरैक्ट करना है तो फिर हमें उनको बहुत मजबूत जड़ें देने की कोशिश करनी है। And that is why teachers, this is the spectrum of life skill education prescribed by National Education Policy. वो कौन से ह्यूमन वैल्यूज हैं? जब आप अपने लेसन प्लान्स बनाते हैं ना, आप लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं,
तो कोशिश करिए कि आप अपने लेसन प्लान्स में ये ला पाइए कि क्या आज के लेसन में, आज इस कहानी के माध्यम से, आज इस ड्रामा के माध्यम से क्या मैं अपने बच्चे में टॉलरेंस, एम्पैथी, एम्पैथी क्या है? दूसरों के प्रति संवेदनशीलता। आप देखिए दुनिया का हर रिलीजन संवेदनशीलता, काइंडनेस, ग्रैटिट्यूड, ईश्वर को धन्यवाद देना सिखाता है, चाहे वो चर्च हो या मस्जिद हो, चाहे वो गुरुद्वारा हो या मंदिर। तो ये जो ह्यूमन वैल्यूज है ना, शायद इनको सिखाने के लिए ही रिलीजन बनाए गए। हमने शायद इनको गलत समझ लिया, हमने रास्तों को ज्यादा महत्व दे दिया और हम मंजिल भूल गए। मंजिल तो सबकी यही थी कि इंसान को, इंसान के चरित्र और इंसान की जो कमजोरियां हैं उनको जानते हुए ये रिलीजन्स बनाए गए थे जो हमें, इंसान को इंसान के साथ सब्र से और सम्मान से रहना सिखाए और हमें अल्टीमेटली उस सुपर पावर, उसको गॉड बोलिए, क्राइस्ट बोलिए, अल्लाह बोलिए, उसको गुरु नानक बोलिए, उसको महावीर जैन बोलिए, या उसको आप राम और कृष्ण बोलिए, सारे रास्ते वही जाते हैं और हर रिलीजन हमें यही सिखाता है। टॉलरेंस, जेंडर इक्वालिटी। हमारा जो इंडियन माइथोलॉजी है वो बहुत स्ट्रांगली जेंडर इक्वालिटी की बात करता है। जेंडर इक्वालिटी वेस्टर्न कॉन्सेप्ट नहीं है। नर और नारी का समावेश ही शिव का रूप है। एंड व्हाट इज शिव? शिव इज सिंबोलिज्म ऑफ एवरी मैन हैज इमोशंस, फेमिनिन साइड, and every female has strength. That is why we have a goddess like Durga, which is symbolic of strength. So woman was never seen as abala. Woman was seen as a creator, Srishtikarta, and that is why the ancient Indian society had Gargi, had Maitreyi, had great women scholars who were given equal rights of education, and they were inspiring. Even our matriarchal society was about the child was given the name from the mother. But पिछले 500-700 सालों में बहुत चीजें बदल गई और शायद हम उनके पहले की अपनी चीजों को भूल गए। लेकिन अगर आप जाएंगे पीछे तो देखेंगे नॉन वायलेंस। दुनिया का हर वो रिलीजन जिसने लोगों को पीस सिखाया है वो इसी भारत भूमि से निकला है। चाहे वो अशोक जैसा राजा था जिसने विश्व भर में बुद्धिज्म को स्प्रेड किया, चाहे वो जैनिज्म है, सबकी उत्पत्ति भारत की इसी जो भूमि है यहाँ से हुई है। तो कुछ तो जरूर ऐसा है जो हमें इस देश में बहुत गौरवान्वित करता है। देयर इज समथिंग मच डीपर, मच हायर, much more than current times, and that is why teachers, हमें अपने बच्चों को ग्लोबल सिटीजन्स बनाना है, उनको दुनिया के हर सोसाइटी के लोगों का सम्मान करना सिखाना है। और इसीलिए वसुधैव कुटुंबकम की बात हमारे किसी रिलीजन ने नहीं की है, हमारे कल्चर ने की। यूनिवर्सल ब्रदरहुड का कॉन्सेप्ट हमारे कल्चर में, एंड रिस्पेक्ट फॉर ऑल पीपल। दैट इज वाई हमारे यहाँ तो नदी और पत्थर, पहाड़ और पेड़ को भी पूजा गया है, बिकॉज ऑल दीज आर कॉम्पोनेंट्स ऑफ नेचर। एंड आई थिंक आवर एंशियंट कम्युनिटीज वर वेरी क्लियर, they were very deeply aware that a stone, a living plant, a flowing water and sun, these are sources of energy and longevity. Human beings will have a very short span of life, and that is why we have to relate to these objects to get strength. That is why आप देखिए आपके कितने सारे रिचुअल्स में आप तुलसी की पूजा करते हो, नीम की पूजा करते हो, पीपल की करते हो, बरगद की करते हो। क्यों उन्होंने ये रिचुअल बनाए कि एक औरत अगर बरगद की पूजा करेगी तो उसके हस्बैंड की लाइफ बड़ी होगी? Actually, it is more that Bargad is one of the longest living tree. So they connected that if you will pray to Bargad, you will plant Bargad trees, and Bargad and Neem are natural environment में पॉल्यूशन को कम करते हैं।
तो ये जो चीजें थी कि अगर घर में बरगद की पूजा होगी तो बरगद का पेड़ लगेगा, हम उसको काटेंगे नहीं, और वो बरगद आपको इन्वायरमेंट के साथ हार्मनी में रहना सिखाएगा। इसलिए उसके लिए एक रिचुअल बना दिया जो उड़ीसा के प्रांत में बहुत फेमस है, यूपी बिहार में भी माना जाता है, और उसका हमने दिन बना दिया कि ये वट सावित्री व्रत है। और एक स्टोरी है कि सावित्री अपने हस्बैंड की लाइफ की लॉन्जिविटी के लिए बरगद के पेड़ के नीचे बैठती है, और माना जाता है कि द लॉर्ड who is the Lord Yam, who governs death, he had to give back the life because of the grace, the piousness, and the divine spirit of this woman. So look at it, how mythology, how these stories have always given us a way forward. And that is why community is integrated with culture, teachers. I think we have been given education, but when we incorporate these culture, traditions with their real meaning and talk about it. Today, the new pharmaceutical companies are telling us, कोरोना में क्या हुआ? आज हमें कोरोना में हॉर्लिक्स, बूट्स बनाने वाले गायब हो गए थे, और हमारे तुलसी वापस आ गया था। तुलसी और गिलोय हम सब ने खाना शुरू कर दिया। बट क्यों ये बनाया गया था कि a lot of Indian families, they would have a tulsi plant as you enter the house, because tulsi is a medicinal plant which would actually keep a lot of bacteria and virus away. That is why the ritual created was the woman in the house is going to pray to tulsi. And हमने इस ज्ञान को छोड़ दिया, कुछ चीजों को हम करते रहे और इसके पीछे की नॉलेज छोड़ दी। और जब नॉलेज छोड़ दी तो आने वाली जो हमारी जनरेशन थी, जो नॉलेज इन्वायरमेंट और नॉलेज डोमेन को मानती है, उसने हमारे इन रिचुअल्स को छोड़ दिया, क्योंकि हमने इन रिचुअल्स का नॉलेज छोड़ दिया। सो टीचर्स, facilitators of cultural educators, please go back, talk to your own parents, talk to grandparents if they are there, look at the scriptures, try and become a scholar of your own culture, each one of you. I know seeing a Bharatnatyam dance, I cannot learn Bharatnatyam, but if I can understand that how Bharatnatyam is various postures which are going to give a woman dignity and poise, and how it is a discipline which brings in wellness, I have taken something from Bharatnatyam. And teachers, this is what is building life skills and value education, integrating national education policy by being teachers as facilitators of cultural education. So I do hope that in this less than 90 minutes of my presentation, I have been able to give you some ideas and understanding. And that is where, teachers, you will also have to take care of yourself. Please practice constructive silence. आप योग करिए, मेडिटेशन करिए, भ्रामरी करिए, या चुपचाप अपने चाय के कप के साथ 15 मिनट सवेरे का समय अपने आप के साथ बिताइए। There is the psychologist E. Seligman, आप नाम लिख सकते हैं। इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया है कि अगर इंसान को पॉजिटिव रहना है, अपने अंदर सकारात्मक ऊर्जा रखनी है, इफ यू वांट टू बी ऑप्टिमिस्टिक, प्रोएक्टिव, पॉजिटिव, एंड यू वांट टू हैव दैट, यस मैम आई वांट टू डू दिस, मैं चीजों से घबरा के हारना नहीं चाहता, मेरे ऊपर जिम्मेदारी है और मैं करना चाहता हूँ, तो रीड हिज वर्क, ई सेलिंगमैन। आपको यूट्यूब पे इनके बहुत से वीडियोस मिलेंगे और आप देखेंगे कि ये वही बात कहते हैं जो हमारे वेदा और शास्त्रों ने कहा है कि इंसान को किस तरह से माइंड, बॉडी, कम्युनिटी एंड सोसाइटी का सेल्फ से इंटीग्रेशन रखने से ही कंप्लीट हेल्थ है, और उसी को वेलबींग कहते हैं। Let us also learn these things. I have invested a lot in this. I regularly practice yoga. I am learning and reading a lot of things, and I am always seeing that what Western philosophy teaches us as psychotherapy, our Indian systems have taught us way back as a ritual of balanced living in harmony with nature. So that is something which I keep doing, and I am sharing it, friends.
Always to be positive and optimistic, practice silence. And silence is when I am talking to myself. So whether it is a real world or the virtual world, teachers, whether it is corporate world or whether it is our teaching classrooms and staff rooms, all stressful situations place great burdens on everyone. ये हमेशा देखा गया है, जब भी स्ट्रेसफुल सिचुएशंस होते हैं तो वो इंसान के ऊपर बड़ी जिम्मेदारियां डालते हैं. They put a lot of burden on us. But be a connected team. अगर हम एक दूसरे के साथ अपने स्कूलों में टीम्स बनाएंगे, आप अपने बच्चों के साथ कल्चरल टीम्स और क्लब्स बनाएंगे, आप चेंज एजेंट बनेंगे, अपने CQ को हाई रखेंगे. बी अलाइंड टू विजन. आप जब अपने विजन से कि हमारा विजन क्या है, हमें अपने देश के इन बच्चों को फ्यूचर के लिए तैयार करना है, हमें इन्हें कैसा बनाना है, हमें क्या इन्हें सिर्फ पैसा कमाना सिखा देना है, सिर्फ इन्हें इंग्लिश मैथ्स हिंदी पढ़ा के छोड़ देना है, या हमें इन्हें जीवन के प्रति एक पैशन और पर्पस देना है. अगर हम ये कर पाएंगे टीचर्स, तो then we are cultural educators who have given children life skills and values. वो चीजें ना कोई इनसे चुरा सकता है, ना वो कभी इन चीजों को भूल सकते. फॉर्मूलाज तो हम सभी भूल जाते हैं, डेट्स हम भी भूल जाते हैं, लेकिन हल्दी घाटी की लड़ाई में अगर हमारे टीचर ने हमें राणा प्रताप के शौर्य को एक कहानी के तौर पे सिखाया, तो 15 साल बाद भी मैं चित्तौड़ जाके वो किला देखना चाहती थी. And that is what is a teacher. I had a fantastic history teacher, and whatever I know today of our culture, I have traveled far and wide, every part of our country, because it was the love of that teacher who made me feel that there is so much in your country, you should feel proud of it. And I do hope, teachers, you will be able to inspire your children. You will be able to. When on the day of valedictory ceremony, along with our honorable chairperson, when we will meet, I will look forward to listening from you, your experiments, your learning, what you have felt inspired today. Because let us remove this, I cannot do it. There is nothing like I can't. We have to cut that and we have to say I can. I commit myself, yes ma'am. अब तो मैं जाके अपनी क्लास में ये जरूर करूंगी. I will definitely do this, Saloni ma'am. मैं ये जरूर करूंगा. That is the promise. All of us from the CCRT training, we trust you for your honesty, for your abilities, for your knowledge and your outreach. So you are the true facilitators for bringing this cultural, artistic aspects into education. I do hope that we will get your active participation. We will get a lot of your insights. And thank you so much, teachers, for being a part of this training program. Your interest and your active participation has been a source of tremendous motivation to all of us at CCRTT. So thank you so much. मैं यहीं पे अपनी बात को विराम देती हूँ. And we have next 15 minutes for interaction. I welcome your questions. You could raise your hands and you can put forward your questions. Anybody who wants to share something, the stage is all yours, teachers. I would be happy to answer your question. Ranjay sir, please help so that we can see the teachers who are raising their hands and who would like to share. आप अगर अपनी कोई भी बात कहना चाहते हैं तो प्लीज कहिए. We will be Dr. Rajveer Kaur ma'am is raising hand. Ma'am, please unmute yourself and you can raise the question. यस मैम. मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने जैसे कल्चरल क्लब क्रिएट करने की बात की है कि स्कूल में हम कल्चरल क्लब बनाएं, तो उसके लिए जैसे कि फंड्स वगैरह हम कल्चरल जो फंड इकट्ठा करते हैं वो यूज कर सकते हैं. जैसे उसमें एक्टिविटीज करवानी है, बच्चों को कुछ सामान देना है, जैसे कि अपना जो रीजन का जो कल्चर एक्टिविटीज मेन है उनको करवाने के लिए, उनको सिखाने के लिए,
उनको भी जो भी फाइनेंशियली सपोर्ट उस फंड से। मैम ये आपकी जो लोकल अथॉरिटीज हैं, आपके जो प्रिंसिपल हैं, और वो वही इस चीज के बारे में आपको गाइड कर पाएंगे। बट आई एम श्योर अगर आप सीसीआरटी की ट्रेनिंग के बाद एक प्रपोजल देते हैं कि हम ये करना चाहते हैं और इसका ये ऑब्जेक्टिव है, तो आई एम श्योर यू विल गेट कोऑपरेशन फ्रॉम योर अथॉरिटीज एंड फाइनेंशियल सपोर्ट ऑल्सो। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। जो हम स्कूल में जाके एक्चुअली हम क्या कर सकते हैं वो आप अभी सिखा रहे हैं हमें। वैसे हम कर रहे हैं, लेकिन आप जो सिखा रहे हैं वो हम ऐड कर सकते हैं। इट इज रियली वंडरफुल। क्या सीखा सर, बताइए आज आपने क्या सीखा? इट इज रियली वंडरफुल एक्सपोजर फ्रॉम यू गाइज। एक्चुअली आपने मैम आज जो भी बताया लाइफ स्किल्स के बारे में, कैसे हम सिलेबस के अलावा हम ऑनलाइन क्लासेस में क्या क्या कर सकते हैं, जैसे कि हम कैसे सोशली कनेक्ट हो सकते हैं, कैसे कल्चर, प्राइड्स, एथिक्स, वैल्यूज हम ऐड कर सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस में एज वेल एज इन ऑफलाइन क्लासेस। जैसे सर ने बताया, भंडारकर सर ने योगा के बारे में, आयुष मंत्रालय से जो बिलोंग करते हैं, उन्होंने कैसे मेंटल एज वेल। थैंक यू विजय जी, बहुत अच्छी बात है। आप फिजिकल हेल्थ के बारे में बताया और सीख रहे हैं। वंडरफुल इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। तेजस पटेल सर, आप बोलना वेरी मच चाहते मैम। हैं? तेजस पटेल अपने को अनम्यूट करें प्लीज। मैम नमस्कार। और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, कल से मैं क्लास अटेंड कर रही हूँ। और मैम जो आज आपने बताया, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम ध्यान नहीं देते क्लासरूम में, अगर वो ध्यान दें तो हम बहुत बच्चों को बहुत अपनी संस्कृति से जोड़ सकते हैं। सबसे अच्छा आपने जो बताया IQ, SQ, CQ, वो बहुत ही अच्छा लगा मैम, बहुत ही बढ़िया। आपका पूरा सेशन, आपका ही नहीं, मॉर्निंग से लेके सर ने जो उड़ीसा का कल्चर बताया था, जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा से लेके आप तक का, बहुत ही बढ़िया रहा मैम। बहुत बहुत धन्यवाद आपको पूरे ऑनलाइन प्रशिक्षणार्थियों की ओर से। थैंक यू मैम, थैंक यू डॉक्टर मीनाक्षी। शैली मैम, आपका हाथ दिख रहा है मुझे। शैली जी, I hope teachers today I tried to speak in Hindi and English both as much as possible, so it might have helped all of you to understand. I wish to learn more languages. Hello. Yes ma'am, we can hear you. Yes ma'am, we can hear you. हाँ जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपका जो आज का जो कल्चर के ऊपर था इनिशिएटिव बहुत ही अच्छा था। और इसके लिए मैं एक चीज डालना चाह रही हूँ कि हमारे स्कूल्स में नो बैग डे हम सेलिब्रेट करते हैं वंस अ वीक। तो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है कि हम एक कल्चर इवेंट उनके साथ कुछ ऐसी चीजें डाल सके अदर देन द नॉर्मल रूटीन स्टडी वर्क। तो जैसे विजिट टू सम प्लेसेस, जो कल वाला भी लेक्चर था उससे भी बहुत अच्छा था। मतलब ऐसे बहुत सारे आइडियाज आ रहे हैं कि अब हम उनको भी डाला जा सकता है। तो आज का ये लेक्चर मुझे बहुत ही अच्छा लगा, इसलिए कि कुछ नया चीज, एक और आइडियाज आ गया हमारे पास जो हम अदर देन नॉर्मल रूटीन वर्क हम कर रहे थे। तो नो बैग डे के लिए एक एक्टिविटी बहुत अच्छी है ये। सो वेरी थैंक यू टू ऑल। बीइंग SRG टेक्स्ट बुक बोर्ड के साथ भी कनेक्टेड हूँ और स्टेट लेवल ट्रेनर के तौर पे भी काम कर रहा हूँ SS सब्जेक्ट पे। और आपने जो बात आज वो कल्चरल कैलेंडर की बात की, वो दैट विल बी लाइक वो काफ़ी बेहतरीन आइडियाज़ हैं, क्योंकि हम उसमें जो आप चंद्र की कला की बात करती हैं वो प्लस माइनस होते हैं, तो उसको हम जियोग्राफी के साथ भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, टाइड एंड उसके साथ भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। एंड इट विल बी वेरी गुड टू लाइक जियोग्राफी, हिस्ट्री, सारी चीज़ों को हम एक साथ इन्वॉल्व कर सकते हैं उसमें। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों को ये आइडियाज लग रहे हैं कि आप लोग कर सकते हैं जी। वेरी गुड। जो भी सेशन रहा, कल का भी सेशन और आज का भी सेशन बहुत ही
मतलब इस प्रकार का सेशन रहा जो कि हमारे बच्चों के रोज की मर्रा की जो भी जिंदगी है, हम बच्चों को कितना भी कुछ पढ़ा लिखा लें, कितने बड़े इंजीनियर बना लें, लेकिन एक सच्चा मानव जब तक ना बना पाए तो हमारा मतलब शिक्षा सार्थक नहीं होता है मैम। और आपने जो भी सेशन में बातें हमें बताई कि बच्चों के अंदर कम से कम जो एक टीचर जो क्वेश्चन की ब्लूप्रिंट करे, तो इंटेलिजेंस क्वेश्चन हो, इमोशनल क्वेश्चन हो, सोशल हो और कल्चरल हो, इन सभी चीजों को ध्यान में रख के जब तक हम ना करें तो सिर्फ एकेडमिक लाइन सुधारने से हम बच्चों के लाइफ को नहीं बढ़ा पाते। और दूसरी चीजें कि हमारी भारतीय जो स्थापत्य कलाएं हैं और सभ्यता संस्कृतियां हैं, ये हमारी वेस्टर्न सिविलाइजेशन के लोगों ने इनको हालांकि अटैक करके डिमोलाइज कर दिया, इसको मतलब लुप्त करना चाहा है। और इन सभी चीजों को हम पुनः से भारत को एक विश्व गुरु बनाने के लिए हम टीचर्स का कर्तव्य है कि अपने बच्चों को इन सभी चीजों के बारे में बखूबी ज्ञान दें और जितना हो सके हम इस पर बखूबी कार्यरत हूँ। और आप सभी का क्लास बहुत ही मतलब मोटिवेटेड रहा और इसके लिए आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। आगे के सेशन भी हम पूरी थैंक यू निष्ठा के वर्मा साथ जी, करेंगे। आप बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी सोच का बहुत स्वागत है एंड आई एम श्योर आप जैसे टीचर्स ही इस सपने को साकार करेंगे। सलोनी मैम, एक बड़े युवा यंग से टीचर हैं गुजरात से, काफी देर से तेजस पटेल सर हैं, वो काफी देर से हैंड रेज कर रहे हैं। तेजस सर आप अनम्यूट करें। जी, मैं थोड़ा कामाख्या के बारे में बताना था लेकिन नहीं होगा, मेरा सेशन खत्म हो गया था। अगली बार कभी मिले तो जरूर सर, कामाख्या हम सब जानते हैं, मैंने कई बार दर्शन किया है और देखिए यही तो चीजें हैं हमें अपने बच्चों तक पहुंचानी है। मेरे लिए कामाख्या टेम्पल इज अ साइंटिफिकली एब्सोल्युटली अमेजिंग थिंग। जी मैम, मैं बाकी कॉम्पिटेंट जितने भी हैं उनसे कहूंगा कभी मौका मिले तो एक बार जरूर कामाख्या आए और आके भारतीय स्थापत्य कला का दर्शन मौका मिले नहीं, मौका निकाल के आए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल जी, मौका निकाल के जरूर आए। जी धन्यवाद जी, धन्यवाद। हाँ जी, यहाँ पे SS अपना नाम बताएं सर। रंजय, जिनके भी हाथ ऊपर है प्लीज उनको हेल्प करें। भार्गवी बहन, मल्हार के उपाध्याय, जो भी बोलना चाहते हैं अनम्यूट करिए प्लीज, अपने को बोलिए। Good afternoon, ma'am. I'm Valarmati from Puducherry, ma'am. Welcome, ma'am. Thank you so much. Ma'am, I would like to thank each and every, on behalf of each and every participant, that you have empowered our skills, not only our the skills, but you have insist the importance of life skills and how much culture is how much culture would be inculcated with education, what miracle it will do. You have wonderfully illustrated everything, ma'am. Really, I inspired of your session, and also I would like to thank Sandeep sir for the before session. I would like to express my heartfelt gratitude to CCRT for providing a wonderful training, which is very much important for the holistic development of the kids in the present scenario, ma'am. Thank you so much, ma'am. You also belong to a wonderful part of our country. So thank you for your genuine appreciation. It is very. Hello, ma'am. I would like to ask one doubt also. Hello, ma'am. नमस्कार। हाँ जी सर, बोलिए। मैं रितेश सोनवाल तिनसुकिया के आसाम से। हाँ सर, बोलिए रितेश्वर सर। मुझे बहुत अच्छा लगा मैम और मुझे बहुत आइडिया मिला। नमस्कार मैम। Thank you, sir. That is short and sweet to the point. Thank you, Riteshwar, sir. Thank you, ma'am. So much. Yes, there is another hand here. Please unmute yourself, sir. बोलिए। हेलो। हाँ सर, आवाज आ रही है आपकी? हाँ जी, बिल्कुल सुन सकते हैं। नाम बताएं अपना। Myself संतोष कुमार प्रसाद। I am from तिनसुकिया असम। और जैसा कि आज हमारे इस सेशन में मॉर्निंग से अभी तक जितना कुछ भी यहाँ पे डिस्कशन हुआ, इसमें से बहुत कुछ जो है पहले से मैं सोचता था, करने की कोशिश करता था, और कुछ जो है यहाँ पे आज डिस्कशन हुआ, इससे में से कुछ चीजें जो मैं ऑलरेडी अपने स्कूल में मैं और मेरे हेडमास्टर दोनों प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कि हम लोग का जो असम का जो लोकल कैलेंडर है, हम लोग असम में ऑलरेडी बच्चों को डेली मॉर्निंग असेंबली में ये करवाते हैं। बहुत बढ़िया सर, वाह, थैंक यू फॉर शेयरिंग इट। थैंक यू। और साथ में जैसे कि बच्चों लोग का जो मॉरल बूस्ट हो या उनमें जो सोशल कोऑपरेशन हो, तो उसके लिए हम लोग एक और चीज़ करते हैं। जैसे कि अगर कोई भी क्लास का जो है
100% अटेंडेंस हो तो उनको हम लोग क्लैपिंग भी देते हैं, जिससे कि उनका मोरल बूस्ट हो, 100% अटेंडेंस हो। और फिर अगर किसी का बर्थडे हो तो हम लोग उनको क्लास में जो है मतलब जस्ट एक क्लैप के जरिए उनको जो है हैप्पी बर्थडे विश भी करते हैं। इस तरह से उनके बीच में जो मॉडल बूस्ट भी रहता है। और आपका बताया वो जो बाकी और भी तरीके हैं, ये सब भी मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं कोशिश करूंगा कि इन्हें अपने स्कूल में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूं। थैंक यू। थैंक यू सर, बहुत बहुत आपका धन्यवाद आपके बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व का और आपने जो भी शेयर किया। आई एम श्योर टीचर्स और वी कैन टेक 1 or 2 more शेयरिंग, बट आप सभी से 170 people are here. Please share your feedback about today's session, your learning. Carry on doing it on the group. It is a wonderful medium for us. और ट्रेनिंग यहाँ 1:30 से 2 बजे खत्म करने के बाद आई एंड संदीप सर, we spend a lot of time in reading your comments and trying to see, get a feedback how to further improve our programs. So please keep connecting with us, keep sharing your insights and your learnings and what you are finding helpful. So next, नमस्कार। हेलो नाम बोलिए अपना पहले, नाम पहले बोलिए। जी मैं आशा उज्जैनी छत्तीसगढ़ से हूँ। बोलिए, आपकी बात सुन पा रहे हैं हम लोग, बोलिए आशा जी। सभी को नमस्कार। और ये CCRT का यह ट्रेनिंग बहुत ही उपयोगी और लाभदायक है हम सभी शिक्षकों के लिए। ये मेरा दूसरा ट्रेनिंग है। इससे पहले 2019 में उदयपुर CCRT से मैंने 11 डेज की ट्रेनिंग कंप्लीट की है। तो ये मतलब बहुत कोरोना की वजह से, कोविड की वजह से हमको ये बहुत मिस कर रहे हैं। यदि हम वहाँ जाके ट्रेनिंग करते तो और लाभदायक होता। लेकिन उसके बाद भी आज की ट्रेनिंग के बारे में, जो 2 दिन की ट्रेनिंग हुई है, बहुत ही लाभदायक रही है। और संदीप सर ने जो हमें बताया और शुरुआत जो की, वो बहुत ही अच्छा लगा सर। और मैडम आपने जो एम्पावरिंग एजुकेटर्स के बारे में जो क्वालिटीज बताई हैं, वो हमारे अंदर एक नया जोश भर आ गया उससे। और हम अपने स्कूल में अपने बच्चों को अभी जो ऑफलाइन या ऑनलाइन गवर्नमेंट के जो नियम है उसके अनुसार कर रहे हैं, उसमें जरूर उसको बच्चों को सिखाएंगे। मैं भी अपने स्कूलों में जो छत्तीसगढ़ के कल्चर हैं या पर्व आते हैं, लोकल फोक जो हमारे रहते हैं त्योहार, उसमें लोक पर्व में जैसे भोजली या सुआ, तो उसमें हम लोग ने वो जो गाने या जो नृत्य होते हैं, तो वो हम बच्चों को स्कूलों में सेलिब्रेट करते हैं। बहुत तो अच्छा लगा मैडम। छत्तीसगढ़ की तो भाषा बहुत ही मधुर है और छाऊ डांस जो छत्तीसगढ़ का है वो मुझे बहुत प्रिय है। और मैंने भी अपने जीवन के कुछ क्षण रायपुर और बिलासपुर में बिताए हैं। तो इस हर भाग की जो हमारी संस्कृति है, कल्चर है, उनको रचना बसाना और उसको प्रिजर्व करना हमारा दायित्व है। तो थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स आशा जी। हाँ मैडम नमस्कार। हाँ मैं जी सर। मैडम डॉक्टर सुनील कुमार फिरोजाबाद यूपी से मैडम। हाँ, बहुत बहुत स्वागत आपका सुनील सर, बताइए। मैडम मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं फर्स्ट टाइम ट्रेनिंग कर रहा हूँ, मैं साइंस स्ट्रीम का स्टूडेंट रहा हूँ। तो जो चीजें आपने जो चीजें आपने बच्चों के साइकोलॉजी के बारे में बताई, तो मैं उनको मैडम फेस कर रहा था। जैसे लूडो वाली प्रॉब्लम मेरे साथ हुई है। मेरा बच्चा है, वो उसको पता है कि मैं लूडो में हार जाऊंगा तो वो इरिटेट होके भाग जाता है मैडम। तो मुझे लग रहा है कि ये जो ट्रेनिंग है हमें डिपार्टमेंटली और जिस फील्ड में हम प्रोफेशनल हैं उसके अलावा हमें कहीं ना कहीं फैमिली में भी बहुत ज्यादा लाभदायक साबित होगी। बिल्कुल सर, थैंक यू फॉर सेइंग दैट सुनील सर, बिकॉज मैं जब आपसे बात करती हूँ तो मैं एक एजुकेटर हूँ, ट्रेनर हूँ, साइकोलॉजिस्ट हूँ, पर एक माँ भी हूँ। एंड दैट इज वाई जो भी मैंने दूसरों के बच्चों से सीखा और अपने बच्चों के साथ एक्सपेरिमेंट किया, मैं उसी के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से ही अपनी ट्रेनिंग में बात करती हूँ। मैम संदीप सर के बारे में एक बात और सर कहना चाहूंगा मैम, कि जैसे आज संदीप सर ने जो 4 धाम की यात्रा को 2 लाइन में बताया, तो मेरी ये नॉलेज से बाहर की चीज थी। तो मैं संदीप सर को सादर प्रणाम करना चाहूंगा कि मेरे ज्ञान में वृद्धि हुई। निश्चित रूप से अब मुझे इसमें बहुत इंटरेस्ट आ रहा है। थैंक यू मैम। चलिए, लेट अस गिव अ बिग हैंड टू डॉक्टर संदीप कुमार फॉर ऑल हिज हार्ड वर्क एंड हिज नॉलेज।
He has many books to his credit. He is a scholar of anthropology, and he by nature is a person who has done tremendous research, and he still keeps publishing his papers. So that is Dr. Sandeep, who is a wonderful resource for CCRT. So thank you for your kind words, Sunil ji. Thank you. उर्वशी देवनाथ मैम एंड हरित बेन मैम देसाई, आप बोलना चाह रहे थे मैम? हरित बेन मैम, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. यस मैम, आई कैन हियर यू. मैं ज्यादा तो कुछ बोलना नहीं चाहिए, सब वर्ड आ ही गए हैं, लेकिन सच में सचमुच अच्छा लगा. और मेरी एक बात है, जो मैं योग में आई एम अ योगा ट्रेनर. हमें जब स्कूल में जाए तो उस टाइम क्या था, बच्चे के साथ मेरे का कम्युनिकेशन अच्छा होता था. तो उस टाइम में हर 5 मिनट पहले उनको प्राणायाम कराती थी कि वो बच्चे जब पढ़ते हैं तो उसका माइंड इधर उधर नहीं हो. तो बच्चे मेरे 2 साल में इतने अच्छे सेट हो गए. और जब कोरोना का टाइम आया तो मेरे को बहुत अच्छा टाइम मिला, तो मैंने हर संडे बच्चे के साथ 1 घंटा निकाला, और मैं 1 घंटे में हर संडे को बच्चे को योग के पूरे जो मैं कुछ बोलना चाहती हूँ, बहुत अच्छा रिजल्ट मिला. तो मैं सबसे यही अनुरोध करना चाहती हूँ कि शायद ऐसा टाइम ज्यादा तो नहीं मिला हमको, चलो, लेकिन जो 5-10 मिनट का स्टार्टिंग और एंडिंग जो टाइम होता है बच्चे को, उसमें थोड़ी हैंडलिंग प्रैक्टिस, आई कांटेक्ट के बाद थोड़ी, तो वो बच्चों को बहुत अच्छा रिजल्ट उसमें आएगा. That is very good, ma'am. Carry on this good work. और योगा के टीचर बहुत कुछ कल्चरल, स्टोरी टेलिंग, अध्यात्म, बहुत सी और चीजों को इंटीग्रेट कर सकता है. You collect all the pictures of ancient sculptures where people have done yoga asanas and tell the child how they strengthen their bones and ligaments and creates them to be better sports people. Then you see children become very interested. That is integrating in education. So thank you, ma'am, for sharing. I can see, yes. Hello. Yes, ma'am. नाम बताएं आप लोग, सबसे पहले अपना नाम बोले. हेलो हेलो मैम, क्या मैं सुन पा रहे हैं? हाँ, मेरा नाम उर्वशी श्रीवास्तव देवनाथ है. हाँ उर्वशी जी बोलिए. हाँ मैम, आप लोगों का जो इंटरेक्शन सेक्शन है उसमें बहुत अच्छा लगा आज का, क्योंकि 1.5 ईयर से जो हम लोगों का कोरोना के वजह से स्कूल से जो एक लिंक अप छूट गया था, तो बहुत बोरिंग और बहुत ही माने डिमोरलाइज फील कर रहे थे हम लोग. तो अभी आप लोगों का जो ये ट्रेनिंग हम लोग ले रहे हैं 5 डेज, अभी 2nd डे ही है, तो ऐसा लग रहा है कि नहीं अभी कब स्कूल खुले और कब जाके हम लोग ये सब जो प्रैक्टिकल में थोड़ा थोड़ा लैग हो गए थे, पीछे चल रहे थे हम लोग, वो लैकिंग छूट जाए और फिर से हम अपने बच्चों के बीच में फिर से वही पहले वाला, मैंने अभी हम लोग बहुत एनर्जेटिक फील कर रहे हैं आप लोगों की ट्रेनिंग के बाद कि कब हम लोग स्कूल जाएं और कब वो सब चीजें फिर से फुल एनर्जी के साथ इम्प्लीमेंट कर सके. चलिए, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच. और जब तक स्कूल नहीं भी खुल रहे हैं, हमने जो बहुत सारी चीजें आपको बताई हैं, आप वो अभी भी कर सकते हैं. आज देखिए, हम आपसे डिजिटल मीडियम से ये सारा कुछ कर रहे हैं कि नहीं. सो यू कैन ऑल्सो डू दैट. So don't wait for the schools to open. Schools are open, only buildings are closed. That is what I believe. Teachers are here and learning and teaching is happening. एक्चुअली मैम यहाँ पे मैंने कि हम लोग गवर्नमेंट स्कूल में है, तो वहाँ पे बहुत से स्टूडेंट्स माने बहुत पीछे है, क्योंकि मैंने उनके पास एंड्रॉइड मोबाइल नहीं है, तो एंड्रॉइड मोबाइल से हम लोग को प्रॉपरली कनेक्ट नहीं कर पा रहे मैम. एक्चुअली मेन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है. Okay, Urvashi ji, I can understand. Like these are very practical issues, but जितना कर सकते हैं करते रहें. Yes ma'am. Sure ma'am. Thank you, Urvashi. Thank you. अभी भी कई सारे हाथ ऊपर हैं, प्लीज अनम्यूट करके बोले. Nice to interact with all of you. Hello. Yes, ma'am. पहले नाम बोले, please. Ma'am, I am Vaikom Benita from Manipur. Welcome, Vaikom Benita. Namaste, Khurumjari, Madam Khurumjari. Khurumjari. मैडम, ये जो आपका जो सेशन है बहुत इंफॉर्मेटिव और हमको एक्सपोजर मिला मैडम. ओके. हाँ, हमको एक्सपोजर मिला. आई एम पार्टिसिपेटिंग इन दिस काइंड ऑफ वर्कशॉप, in this kind of national workshop for the first time, and I'm very happy.
You are most welcome. Thank you so much for joining. And now you are also a ambassador for cultural education. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. And I would like to add that मैं culture का जो है ना वो अभी तो मैं स्कूल नहीं जा रही हूँ. That's so I won't be able to knowledge नहीं दे पाऊंगी student को उसके बारे में. मैं घर से शुरू करूंगी, मेरी बेटी से शुरू करूंगी culture के बारे में और not only in from Manipur culture but from entire India also. That's what I want to share with you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you for sharing that. Thank you so much. Thank you. Thank you. Good afternoon, ma'am. Yes, ma'am. My name is Nalinakshi. I am from Karnataka, ma'am. I am I am working in rural area, ma'am. As you are telling to become a very digitalized, you are telling the importance of digitalization, ma'am. So as we are because of this pandemic, we couldn't connect with our children physically. So I am and 6 more friends made in one group called as E-GEMS class. Through that group, we are conducting every day 6:30 to 7:30 an English online class, ma'am. So you are telling the importance of digitalization. So we are doing in our district, ma'am. So not only I am doing in lessons for our only my working place children, and throughout the district, all the rural children are connected with we people. More than 100 children are getting benefit from this class, ma'am. So thank you for giving that idea, and I am very much happy to be the part of this workshop, and I am expecting in more ideas to give best to my children, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you so much, ma'am. A very good initiative. Thank you so much for this. Yes, ma'am. Thank you so much. Thank you. That was Nalinakshi ma'am from Karnataka, sharing her initiative in spite of being in the rural area. Hello, ma'am. Yes, ma'am, we can hear you. Sharda ma'am from Telangana. Yes, ma'am. जो आज का जो भी सबको नमस्कार, जो भी ऑनलाइन में शामिल हुए हैं और अब जो 2 साल के बाद आफ्टर कोरोना के बाद जो टीचर्स पूरे भी अब ऑनलाइन में जो दिख रहे हैं, ये बहुत खुशी की बात है मैडम। और जो आज कुछ क्लास में आप जो पॉइंट्स बताए हुए हैं कल्चरल एक्टिविटीज के बाद लाइफ स्किल के बारे में और जो एजुकेशन IQ, EQ, HQ, ये जो पॉइंट्स जो आप बताए हैं, ये बहुत सारे पॉइंट्स बहुत ही अच्छा लगे हैं मैडम। अब ये भी हमारे जो स्टूडेंट्स को कल्चर के बारे में क्या जो आप ऑनलाइन और ऑफलाइन में कुछ भी बच्चों को बताने के लिए ये बहुत सारे यूजफुल होंगे। लॉट ऑफ आइडियाज शारदा मैम, जितने रिसोर्स पर्सन्स आ रहे हैं उनके भी आइडियाज हैं। अब इनको इनकॉर्पोरेट करके आप लोग अपने PPTs बनाएं, वीडियोस लीजिए और इन आइडियाज को शेयर करिए। जो हम कर सकते हैं, ऑप्टिमिज्म का मतलब वही है, हम इस पे ज्यादा ध्यान देंगे हम क्या कर सकते हैं। ओके मैम, थैंक यू। Whatever is practically possible in your area, you are requested to do that. You will get many more ideas. That is the whole reason CCRT is the Cultural Resource Center. So all these resource persons, people are meeting you through this digital technology, and I am very happy to hear that so many of you are getting ideas to implement in school. So this is a new beginning, and yes, today we are concluding day 2. I will be asking Dr. Sandeep now to give his concluding remarks. And if there is, I can see many more hands here. If you can, one of you, Harpreet Kaur ma'am, do you want to speak? Please unmute yourself, ma'am. Ma'am, you are not unmuted. Harpreet Kaur ma'am, we can't hear you. You have to unmute yourself. हाथ ऊपर करेंगी तो वो unmute हो जाएगा.
यस हरप्रीत मैम। एक कड़ी की लड़ी है सारा सेशन, 4 धाम की यात्रा से कैसे मिलती खुशी ये बच्चों को बताना है। योग और शरीर से मन की शांति को कैसे पाना है। तुलसी और टेक्नोलॉजी, इनके बीच का गैप कैसे भरना है, कैसे जोड़ना है, ये बच्चों को सिखाना है, ये बच्चों को सिखाना है। यही हमने आज सीखा है और यही सिखाना है। थैंक यू। बहुत सुंदर हरप्रीत मैम, बहुत सुंदर। तुलसी एंड टेक्नोलॉजी, योग और चारों धाम की यात्रा जो आज संदीप जी ने हम सबको कराई। तो all these is the richness and the deep rooted traditions which makes us strong. So over to you, Dr. Sandeep. Thank you so much, ma'am. I would say only that to all intellectual brain, you ignited a lot during your discussion. And I came to know through the interaction, अभी भी सारे लोग चाहते हैं कि आपसे बात करें। अगर हम कंटिन्यू करेंगे तो पता नहीं शाम तक ये चलता रहेगा। 200 से ऊपर लोग हैं, अभी भी 12 लोगों ने हाथ खड़े किए हुए हैं। और मैम ने पंजाब से, हरप्रीत मैम ने बिल्कुल समराइज कर दिया जी कि तुलसी और टेक्नोलॉजी दोनों के साथ में हम स्कूल्स के अंदर में ये ब्रेन सेट लेके अगर जाते हैं तो डेफिनेटली हम वंडर करेंगे। और सलोनी मैम मेरी कलीग हैं, उनको मैं बहुत सारा थैंक यू करता हूँ। इसके साथ में सलोनी मैम के साथ और ऑन बिहाफ ऑफ CCRT वी आर थैंकफुल टू एक्चुअली ऑल ऑफ यू। यू नो व्हाई? इसलिए नहीं कि आप हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं, मैं आपको बताऊं क्यों। कोरोना जैसे एपिडेमिक 2020 मार्च में स्टार्ट हुआ, आप लोगों ने सडनली सारे सिलेबस को ऑनलाइन मोड में, राइटिंग से उसको डिजिटल मोड में, हाउ द कंट्री हैज ट्रांसफॉर्म्ड ऑल डाटा विदिन फ्यू मंथ्स ऑफ टाइम। आपने सारे सिलेबस चेंजेस, वो एनर्जी कहाँ से आता है वो पता नहीं, आप लोग जाने। एक इंडियंस के अंदर ही ऐसी एनर्जी होती है, ऐसा मैजिक करते हैं मैम सलोनी ये लोग। इन टीचर्स ने हमारे बच्चों के लिए, पूरे देश के बच्चों के लिए सिलेबस को, अपना परिवार, अपना हार्डवर्क सब छोड़ के सडन सब सिलेबस को ट्रांसफॉर्म कर दिया और हमारे बच्चों के बीच में सब सिलेबस को ले आया। उसके लिए आपको बहुत सारा थैंक यू। बीइंग पेरेंट्स थैंक यू, CCRT ऑफिसर एज ए थैंक यू, चूंकि आप प्रोग्राम में हैं, ठीक है। थैंक यू। मैं 2-3 नाम और बहुत इसमें जो प्रोमिनेंट आ रहे थे, आसाम से टीचर थे, तेजस सर हैं, तेजस पटेल सर, बहुत देर से, बहुत यंग टीचर हैं, वो इंतजार कर रहे थे। गुजरात से अभी भी स्माइल कर रहे हैं, बहुत स्माइलिंग फेस है तेजस सर, थैंक यू। और विजय सर हैं, विजय सर तो मैं देख रहा हूँ कल से बहुत सिंसियरली। डॉक्टर सुनील हैं, वो चारों धाम की बात करते हैं। हम लोग जल्दी मिलेंगे सर, CCRT में वो प्रोविजन है। और मैं अगर 2 नाम भूल जाऊं ना अभी के प्रोग्राम में तो इनजस्टिस हो जाएगा। हाउ वी आर कमिंग टू दिस सेशन, हाउ द विजन हैज बीन डेवलप्ड एंड कंसीव्ड, द आइडिया बिहाइंड दिस ऑल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, दैट इज आवर ऑनरेबल चेयरपर्सन डॉक्टर हेमलता एस मोहन। उनका विजन है, उनका गाइडेंस है, और साथ में हमारे डायरेक्टर सर का निरंतर मार्गदर्शन है। इन दोनों के बिना ये संभावनाएं नहीं थी कि हम आप कनेक्ट होते। लाइक ऑल ऑफ यू, CCRT also evolved during this 2 years, और लास्ट ईयर हमने 24 प्रोग्राम किया और अभी हम ये 5वां प्रोग्राम इस साल का कर रहे हैं। टोटल 29th प्रोग्राम वी आर लाइकली टू कंप्लीट इन CCRT ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म। और वैसे 2 लाख लोगों की ट्रेनिंग CCRT ने करा ली है अभी तक। I congratulate you to being the family member of that extended 2 lakh family। उस मेंबर के आप भी सदस्य हो गए हैं और हमें खुशी हुई मैम। अभी देखिए आपको क्वेरीज मणिपुर से भी आ रहा था और उनकी हिंदी इतनी स्पष्ट थी। वैसे तो कुट्टी सर भी उस दिन हिंदी में ही बोल रहे थे, मेरा हिंदी अच्छी नहीं है। और कितना अच्छा हिंदी बोलोगे भाई, आप तो हिंदी में ही बोल रहे थे कुट्टी सर, योर हिंदी इज सो गुड। तो आप ऐसे सब पूरे देश से कनेक्ट रहें। आई रिक्वेस्ट यू गो थ्रू द वेबसाइट ऑफ CCRT, आपको उसमें बहुत सारी बातें और भी मिलेंगी। और गो थ्रू द वेबसाइट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया,
ये दोनों वेबसाइट को आप जरूर देखें, बाकी डिटेल आपको मिलेगा। और CCRT हमेशा आपके साथ में है, आपके सपोर्ट में है। विद दीज वर्ड्स, क्योंकि लंच का टाइम है, हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा होगा, जिसको हम पेट में चूहे दौड़ना कहते हैं हिंदी प्रोवर्ब में, तो आप मुझे इजाजत दें, सलोनी मैम इजाजत दें। वी कैन कंप्लीट द फॉर्मेलिटीज ऑफ टुडेज सेशन, है ना? चूहे दौड़ रहे हैं ना, देखिए आप कह भी रहे हैं छोड़ दो सर अब। तो थैंक यू सो मच बीइंग विद अस, सभी को नमस्कार। और कल हम फिर से स्वच्छ भारत मिशन लेक्चर के साथ में और हिंदुस्तानी म्यूजिक के मैजिक के साथ में आपके साथ प्रस्तुत होंगे। थैंक यू एवरीवन, नमस्कार, बीइंग विद द CCRT, थैंक यू। Thank you. भारत। Safe. We will meet tomorrow morning. Thank you, sir. We all meet tomorrow morning. Take care. Stay Thank you, sir. safe. Thank you, ma'am.